خیر شو ځکه چې نه جواب دی که نه نه تاسو به مې چې دغه درکړی وم کړی سم لیکلي دي که نه نه سره موږ نه دي سم نه دي کړی دا ډېر په هغه باندې راغلی وه چې نن بس ځوانانو ټاپک روړي او موږ ډېر ډسکشن کوو بیمارۍ کې راغلي اس ټاپک ما په نه کتلې سر کتلی مې لږ لږ سره ما ذهن کې یو ټاپک راځي equal employment opportunity دا ته به لیکلي کړه دا موږ بیا پرزنټ کېږي پریزنټ سره ته داسې نه ویل کله تا نه نه چې ته ځان سره ولیکې نو چې راوړې نو بیا به ګورو سره بیا ډسکشن پکې کوو زه به یو نور به ته کلیر کوم مې بي دا نه ستاسو ټاپک شروع شي ریسرچ ته آسان شي بیا دا چې ټاپک پکې چې هغه ښه ټاپک وي او تاسو به کار وکړئ نو دې دوران کې به ستاسو کار شي یو سمستر کې نو مطلب دا دی بیا چې دا ټایم تیر شو دا ډېر کارو کې ویل شي راځي دا ما اصل کې زه نو زما څه مطلب نه دی زما مطلب صرف دا دی چې ریسرچ میتھډالوژي دوران کې د لیکچر دوران کې تاسو چې سم آیډیا ذهن ته راځي ته اوس پوهیږئ کېږي زه ټیچر یم تاسو نو زه دا وایم چې تاسو هغه ټاپک دی هغه کوم کار تاسو سپروایزر دی او تاسو د کلاس دوران کې شي چې ته په دې کورس ورک نه بیا غیر ټایم ورکی او بیا راځي او سپروایزر سره وکړي او هغه تاسو بیا ټاپک درکړي او چیزونه دا غیر خدای چې تاسو دا ټاپک او دا څونه د شپږو میاشتو کې دا نه کړی دی چې اخر کې دې تاسو سپروایزر ضرورت هم صحیح موږ سره لکه آیډیا شته دی خو لکه ملټیپل آیډیاز دي ما تاسو ویلي چې جست تاسو خپل سوچ چې سره راځي کنه ضروري نه چې بالکل اکورټ وي صحیح اځ تاسو سم لیکل شي بس یو سټیټمنټ ولیکئ کنه یو سټیټمنټ ولیکئ چې تاسو یې کې سره راځي بل یو سټډي وکړئ یو ریسرچ پیپر وګورئ یا مطلب تاسو یې څه کوېسچن راځي کوېسچن سره رائټ آوټ صحیح تاسو مطلب دا ویل نه چې کوېسچن تاسو په پیج باندې ماته رائټ آوټ کړئ نو سبا تاسو یې چې دا ټاپک سره دې سره ریلیټډ ریسرچ پیپرز ما لینکس درکړو صحیح لینکس ریسرچ پیپر باندې د دې ما ریسرچ کړی په هم د دوران کې ګوګل صحیح دي او تاسو ریکورډ دې کې وسینګ سټډي کوي هغه وایي بیا په ولې چې ریسرچ پیپر هاو ټو سټډي ریسرچ پیپر صحیح دا ز سټپ وایز روان دي دا اوس چې دې نن چې کوم کلاس دی نو هغه فارمولیشن اف ریسرچ پرابلم دی کنه چې لکه مطلب پہله تاسو ټاپک سلیکټ کو تاسو ذهن کې ټاپک راغی نو بیا پرابلم سره یو پرابلم دی کنه ته ریسرچ ته کې نو ریسرچ خدا څه نه چې لکه تا خپل خوشاله نه یو شي راځي نه یو پرابلم دی دا د فیل شو چې یار د ایشو دا یو پرابلم د سوسایټي د کمیونټي کې زمون په دې ان کیس تاسو مینجمنٹ ساينس فیلډ دی نو هغه کې سب پرابلمز دی هغه کې تاسو یو ایشو روچته شو هغه ایشو باندې تاسو سال کول غواړئ ریسرچ از نثing research to study or to find the solution of a problem so problem statements are the way how we can define problem statement problem statement basically problem statement is the research topic problem statement is the research topic we select a question we select a statement and their statement if we find the solution of their statement this is known as problem statement so whenever a problem so then there will be a solution so problem statement means ke formulation of research problem kya cheez hai what is mean by research problem to research problem before you start any form of study there are different types of studies case studies research article research papers समझ आ रहे हैं ये स्टडीज है सारे तो ये कहते हैं कि कोई भी स्टडी आप कर रहे हैं get a clear understanding of what a research problem is to learn to formulate it properly पहले आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करें आप लोगों ने किया कि नहीं जी सर टॉपिक लाए जी सर कुछ स्टेटमेंट लाए जी हाँ गुड हाँ क्या है चलो इनसे डिस्कस करते हैं सर मेरा कॉन्सेप्ट तो थोड़ा उसकी तरफ है सप्लाई चेन की तरफ हाँ सही है दूसरा मैंने उससे रिलेटेड एक नोट ठीक है इम्पैक्ट ऑफ ई प्रोक्योरमेंट ऑन सप्लाई चेन परफॉर्मेंस जो हमारे पाकिस्तान के जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसके मतलब उन्होंने से डेटा कलेक्ट किया उन्होंने लेकिन मतलब आपने रिसर्च पेपर प्रॉपर्ली स्टडी किया है जी जी सर अच्छा तो इम्पैक्ट ऑफ
क्या ई प्रोक्योरमेंट ई प्रोक्योरमेंट जी, ई जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक हाँ के जरिए जो भी मतलब सप्लायर कांटेक्ट करते हैं गवर्नमेंट एंटिटी से या अच्छा। बिजनेस टू बिजनेस भी हो सकती है। अच्छा, तो इस टॉपिक पे आप समझ आपको क्लियर है कि इसका मतलब क्या है? थोड़ी बोल सकते हैं। नहीं मुझे मैं आपको क्लियर कर लेता हूँ ना, आपका काम हो सकता है इसमें आपका टॉपिक सेलेक्ट हो जाए, उस पर आप काम शुरू करें। जी जी समझ आ रहा है कि नहीं? तो फिर मैं आपको इंडिविजुअली खैर 5-10 मिनट दे दूंगा ठीक हर है। क्लास में, ठीक है ना? ठीक है। तो आपने लिखा है इम्पैक्ट ऑफ, यहाँ पे मैं थोड़ा लिख लेता हूँ, ठीक है? आपका टॉपिक समझ आ जाए। इम्पैक्ट ऑफ इस तरह इम्पैक्ट है ना कि इफेक्ट है, इम्पैक्ट है सर। इम्पैक्ट ऑफ ई रिक्रूटमेंट जी जी सर। ऑन सप्लाई चेन परफॉर्मेंस, ऑन सप्लाई चेन परफॉर्मेंस, सप्लाई चेन परफॉर्मेंस and evidence from manufacturing industries in Pakistan. एन है जी जी सर। एंड एविडेंस From बाकी ने जिन्हें किया है इसको देखें कि इस तरीके की कार में क्या एविडेंस ऑफ from manufacturing industries in Pakistan. फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। जी जी ये जो एविडेंस स्टार्ट है ना, एविडेंस है, इसको मैं जरा क्लियर करूं। ये इसको आप कहाँ बंद करेंगे? ये आपने सिर्फ उस एरिया में स्पेसिफिक एरिया आपने पाकिस्तान लिया है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो अमेरिका की भी है, चाइना की भी है, ग्लोबल भी है, लेकिन स्पेसिफिकली आपने पाकिस्तान का लिया है, तो इसलिए ये आपके पास इसका एविडेंस है। ये अभी मैंने आपको केस स्टडी के बारे में, सो दिस इज द स्टडी, द केस। कौन सा केस आप स्टडी कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं, चाइना में कर रहे हैं, इंडोनेशिया में कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं? तो वो केस आपका स्टडी केस क्या होगा? समझ आ रहा है कि नहीं? सो ये आपके पास ये जो एरिया है, ये इसलिए हम लेते हैं कि क्लियर हो जाए, जो रीडर है, जो बंदा रीड करता है, उसको क्लियर हो जाए कि इसने ये रिसर्च कहाँ पे किया है, कहाँ से उसने डेटा लिया है और कहाँ से कंसर्न है ये रिसर्च, कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, हुआ है ये इम्प्लीमेंट। तो ये आपके पास पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे है। समझ आ रही है? अब बात आती है आपका ये जो टॉपिक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका टॉपिक है। तो आपने लिखा इम्पैक्ट, एक है इफेक्ट, एक है इम्पैक्ट, दोनों में फर्क है। इम्पैक्ट और इफेक्ट में फर्क है। इम्पैक्ट का मतलब ये लॉन्ग और इफेक्ट का मतलब है शॉर्ट। इफेक्ट का मतलब क्या है? शॉर्ट। और इम्पैक्ट का मतलब क्या है? लॉन्ग। समझ आ रहे हैं? लॉन्ग टर्म के लिए जो आप लॉन्ग टर्म एक चीज ले रहे हैं तो उसको इम्पैक्ट कहते हैं, और जो शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं, जैसा हम कहते हैं ना, शॉर्ट टर्म पे ये इंप्लीमेंट होगा, लॉन्ग टर्म पे होगा, 20 साल, 100 साल, 1000 साल तक ये चीज चलेगी, तो ये इम्पैक्ट उसका हो गया। और इफेक्ट का मतलब है छोटा एक प्रॉब्लम है और एक इशू आ गया, जिस तरह हेल्थ, आप में से बहुत से लोग हेल्थ से रिलेटेड है, तो हेल्थ में अगर लेट सपोज एक प्रॉब्लम आ गया या किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आ गया, लेट सपोज ब्रेन्स को हम लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आ गया मैनेजमेंट में, और उसी दिन, इस हफ्ते में, एक महीने में उसको सॉल्व आउट कर दिया और बात खत्म, तो इसको हम इफेक्ट पे नाम देते हैं कि इसका इफेक्ट ये हुआ था कि इस महीने में या इस वीक में या इस डे पे ये हुआ था, तो उसका ये इफेक्ट ये हुआ आ रहा था। समझ आ रही है कि नहीं? तो इम्पैक्ट और इफेक्ट में ये फर्क है। तो इम्पैक्ट ऑफ ई प्रोक्यूरमेंट, तो सबसे पहले ई प्रोक्यूरमेंट का आप कि ई प्रोक्यूरमेंट है क्या चीज, कंसेप्ट आपने ये क्लियर करना है कि ई प्रोक्यूरमेंट क्या है। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक और प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या है? प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या होता है? dealing between two businesses are customer with business with customer or business with any government organization. अच्छा, मतलब इंटरनेट के थ्रू Purchasing of something for परचेज होती है। purchases of something for the business use or further sale. It is अच्छा, this is known, it is known as procurement. So e-procurement means अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक तो ये प्रोक्यूरमेंट बाइंग सेलिंग तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, Yes. लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल मीडिया पे करते हैं या इलेक्ट्रिकल उसको यूज करते हैं तो उसको ई प्रोक्यूरमेंट कहते हैं। सिंपल ये सर, है। इसको ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट भी कहते हैं। हाँ, ऑनलाइन जिस तरह आप कहते हैं ना, ये उस पे चीजें जो मंगवाते हैं लोग ऑर्डर पे, वो भी है। Yes, sir. तो ई प्रोक्यूरमेंट सप्लाई चेंज परफॉर्मेंस ऑन, अब ये क्या है? इसमें ऑन लिखा है, ऑन, कि इसका इफेक्ट इस पे मालूम,
ये सप्लाई चेन परफॉर्मेंस क्या चीज है जानते हैं? डू यू नो Yes. सप्लाई चेन परफॉर्मेंस? सर ये बिज़नेस मतलब जो चीज़ ख़रीद कर लाते हैं तो उसको मतलब पहले ख़रीदते हैं फॉरेन कंट्री में या एंटर मतलब नेशनल बेस पर, फिर इसको एक ट्रांसपोर्ट को देते हैं कार्गो को, फिर इसको बिज़नेस तक लाते हैं, फिर इसको स्टोर एक्सचेंज, सप्लाई का एक्सचेंज यूज कर रहे हो। स्टोर कर देते हैं, फिर इसको फर्दर मतलब सेल के लिए वेयर हाउस तक भेज देते हैं। सही है, सही है। मतलब चेंज का मतलब ये है कि एक प्रोसेस के थ्रू ये आ रहा है, Yes. पहले बन गया, फिर उसने बाइंग कर दी, फिर उसको सप्लाई कर रहे हैं, उसके मुल्क में आ रहे हैं, उसके मुल्क के अंदर फिर उसके सूबे में आ रहे हैं, उसके सूबे के अंदर उसकी सिटी में आ रहे हैं। ये एक वो जो चेन वो यूज कर रहा है। फिर ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ वेयर हाउस में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कहाँ पर कितने रखना है और मतलब ठीक है, इन द एंड मतलब उस तक पहुंच जाना। पहुँचा। तो परफॉर्मेंस अब ये आपके वेरिएबल्स हैं इस स्टडी के, समझ आ रहे कि नहीं? आप कहते हैं ये तो आपने ऑलरेडी किसी रिसर्च पेपर उठाया है, लेकिन सेम टू सेम आप इसको नहीं ले सकेंगे। सर इसको प्लेजरिज्म पे कहते हैं। सर इसको ACCA में बहुत एक्सप्लेन किया गया है, मतलब सप्लाई किया है सर। नहीं, लेकिन Online. रिसर्च में आप उसको किस तरह लेंगे? सर आप रिसर्च में ये है कि ये किसी ने ऑलरेडी रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ है, जी सर, ये सेम टू सेम टॉपिक आप नहीं ले सकते। इसमें आप क्या करेंगे, कुछ अपनी तरफ से एडिशन करेंगे कि आपका हो जाए। ये तो ऑलरेडी आपने किसी का टॉपिक लेके, ये नहीं कि आपने आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने तो कम से कम टॉपिक को ले आए कि आपके ज़हन में कोई चीज़ है, आपने कोई चीज़ स्टडी कर ली, लेकिन ये किसी और का रिसर्च है, किसी और का किया हुआ काम है, ये उसने पब्लिश किया हुआ है, पब्लिश जर्नल में उसने पेपर पब्लिश किया हुआ है। जी सर। आपने इसको अगर अपने इस पे यूटिलाइज करना है तो फिर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। यस सर। तो प्लेजरिज्म उसको कहते हैं कि वर्डिंग जो आप उसकी सेम टू सेम वर्डिंग आप लेते हैं तो उसको प्लेजरिज्म मींस चोरी, कि आपने उसका काम चोरी किया हुआ है और उसको फिर बैन कर लेते हैं, फिर आपको डिग्री नहीं मिलती, आपकी डिग्री भी उसको खत्म कर दी HEC वाले कि आपने किसी और का रिसर्च चोरी किया हुआ है, मतलब सेम आपने उसको अपने नाम पे किया है। समझ आ रही है कि नहीं? तो इस तरह रिसर्च ये आपने नहीं करना है। जो टॉपिक आप सेलेक्ट करेंगे उससे आइडिया ले सकते हो, उसमें कुछ अपनी तरफ से कुछ एडिशन तो वो जरा डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन ये इस टॉपिक को सिर्फ मैं समझा रहा हूँ कि द इफेक्ट ऑफ ई प्रिक्योरमेंट ऑन सप्लाई चेन परफॉर्मेंस। तो सप्लाई चेन परफॉर्मेंस एक वेरिएबल है। बेसिकली आप ये मालूम कर रहे हैं कि ये ई प्रिक्योरमेंट का इफेक्ट या इम्पैक्ट ये सप्लाई चेन परफॉर्मेंस पे क्या है। अगर सप्लाई चेन परफॉर्मेंस एक वेरिएबल है, अगर ये अच्छा हुआ, समझ आ रहे कि नहीं? अगर ई प्रिक्योरमेंट अच्छी होती है तो उसकी वजह क्या होगी कि आपकी सप्लाई चेन परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर सप्लाई चेन परफॉर्मेंस अच्छी रही तो आपकी बाइंग सेलिंग में ज्यादा इंक्रीज आएगा। यस सर। समझ आ रही कि नहीं? मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? क्योंकि आपका वो है, आपका एरिया है, आपकी स्टडी है ना, तो मैं सिर्फ उसको सिर्फ वो कर रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आपका ई प्रिक्योरमेंट तब अच्छा होगा कि अभी सप्लाई चेन परफॉर्मेंस जो ये कह रहे हैं ना कि ये प्रोसेस जो है ये चेन यूज कर रहा है, एंड यूजर तक पहुंचाने का जो प्रोडक्ट वो यूज कर रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट के लिए वो जो चेन यूज कर रहे हैं, अगर उसमें परफॉर्मेंस अच्छी हो, अगर टाइम पे कंज्यूमर को मिल जाए, टाइम पे डिलीवरी हो जाए, समझ आ रहे कि नहीं? ये परफॉर्मेंस है। अगर ये परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो फिर आपको मोर लोग, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग आपको डिलीवर के लिए ऑर्डर देते हैं और आपकी बाइंग सेलिंग और आपकी जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है या जो मैन्युफैक्चरिंग जो आप कर रहे हैं उसकी ज्यादा डिमांड होगी। समझ आ रहे कि नहीं? तो इसका इफेक्ट हम मालूम कर रहे हैं। ये तो अंडरस्टूड बात है, ये तो ये थ्योरी है। आप ये किसी HR की थ्योरी है, इसको HRM कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये HRM की थ्योरी है और HRM की थ्योरी ये है कि अगर आप ई प्रिक्योरमेंट सप्लाई चेन परफॉर्मेंस, समझ आ रहे कि नहीं? ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि अगर इस किस्म का टॉपिक आपने सेलेक्ट कर दिया तो फिर उसकी वर्डिंग भी थोड़ी हम चेंज करेंगे और उस रिसर्च पेपर के अंदर जो चीजें उसने किए हैं उसको छोड़ के उसने क्या छोड़े हैं उसको हम ऐड करेंगे। समझ आ रहे कि नहीं? इसमें हो सकता है कि उसने लेट्स सपोज सप्लाई चेन परफॉर्मेंस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इसने जो जिस तरह बता दिया, सप्लाई चेन परफॉर्मेंस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं।
सप्लाई चेन हाँ। परफॉर्मेंस के अंदर क्या क्या चीजें आती है सप्लाई चेन के अंदर? सप्लाई उसकी चेन क्या वो है फैक्टर्स हैं? सर पहला वो जो हम डिमांड सप्लाई से शुरू होती है, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट अप टू एंड यूजर, मतलब पूरी डिमांड जब एंड तो इसके अंदर हजारों फैक्टर्स होंगे ना? जी सर। जी जी तो अब आपने देखना है कि जो फैक्टर्स उस बंदे ने इस पेपर में लिए हैं और जो फैक्टर उसने छोड़ दिए और आपको पता है कि इसने इंपॉर्टेंट फैक्टर छोड़ दिए, तो वो आप ऐड करेंगे, तो उससे आपका रिसर्च पेपर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। उसने जो काम किया है उसको छोड़ के उसका दूसरा एंगल काम नहीं है वगुना रिसर्च सलो वगुना यो तरफ पुलिस में द तरफ पुलिस में द तरफ पुलिस। तो इस तरह आपका रिसर्च डिफरेंट होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपने ये क्यों लिया है, फलाने का रिसर्च भी तो इस तरह है, तो आप कहेंगे उसने ये किया था, उसने ये छोड़ा था, मैंने इसमें ये एडिशन किया। सर इसमें क्या है वो है मतलब हम ऑनलाइन सप्लायर ढूंढते हैं, फिर इनसे मतलब बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर इनसे मतलब चीज़ मांगते हैं और ऑर्डर देते हैं, फिर इसको ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर वो हमें माल सप्लाई करते हैं मुख्तलिफ मतलब कुरियर सर्विस के थ्रू या कोई जो एजेंसी है उसके साथ, उसके ज़रिए वो माल सप्लाई करते हैं, फिर हमारे वेयर हाउस तक आते हैं, फिर वहाँ हम ऑनलाइन उसको मतलब मैनेज करते हैं, इसको देखते हैं कि कितना पहुंच गया, तो हमें ऑनलाइन पता चलते हैं कि हमारे वेयर हाउस तक ये पहुंच गया, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। These are the factors। अब ये इसके अंदर ये वेरिएबल्स हो गए, सप्लाई चेंज के अंदर ये सारे वेरिएबल्स हैं, समझ आ रहे कि नहीं? तो फिर आपने इस वेरिएबल्स को देखना है कि किस वेरिएबल पे मैं डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ, मुझे इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो वो आपके पास कोर वेरिएबल। उस दिन मैंने आपको जो टॉपिक्स लास्ट क्लास में मैंने आपको टॉपिक सिलेक्शन के बारे में जो बता रहा था कि उसमें आपके पास क्या होगा, इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्शन या लिस्ट ऑफ द कीवर्ड्स। मैंने लिखा था ना लिस्ट ऑफ द कीवर्ड्स, लास्ट क्लास में मैंने लिस्ट ऑफ द कीवर्ड्स एक वर्ड यूज किया था, एक लाइन यूज किया था। तो उसका मतलब यही है कि इसमें आपकी कीवर्ड्स आपके पास ये आ गए। ई प्रोक्योरमेंट क्या चीज है, सप्लाई चेंज परफॉर्मेंस क्या चीज है, ई प्रोक्योरमेंट के अंदर क्या चीजें आती हैं, उसके अंदर क्या एक बॉक्स है ना, उसके अंदर बहुत सी चीजें हैं, और सप्लाई चेन परफॉर्मेंस के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो ये सारे वो कीवर्ड्स हो गए 10 से 20 से 30 से, उसमें से फिर आपने सिलेक्शन करना है कि मैं इंटरेस्ट इसमें ले रहा हूँ, या हो सकता है आपका इंटरेस्ट हो या आपका एक्सेस वहां पे हो, या ये है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, उसका कोई रीजन होगा, वो आप जस्टिफिकेशन के साथ बताएंगे। कि अगर आपसे कोई पूछे कि लेट्स सपोज सप्लाई चेन परफॉर्मेंस के 10 फैक्टर्स हैं, उसमें आपने 4 फैक्टर ले लिए, 6 को इग्नोर कर दिया, तो उसकी क्या जस्टिफिकेशन होगी, आप उसकी जस्टिफिकेशन देंगे। इसलिए मैंने इसका ये जस्टिफिकेशन भी हो सकता है कि इस पे ये बाकी जो 6 मैंने छोड़ दिए, उसमें बहुत से लोगों ने काम किया है, ये 4 पे लोगों ने काम नहीं किया, इसलिए मैंने ये, या ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आता है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, या ये मेरे लिए इजीली एक्सेसिबल है, ये भी एक जस्टिफिकेशन। तो जो भी आप कह सकते हैं, या आप जिस एरिया का लेते हैं, तो हो सकता है ये 4 फैक्टर वहाँ पे ज्यादा अवेलेबल हो और 6 का उसमें इतना वो नहीं हो उस इंडस्ट्री में, तो इसलिए मैं ये 4 ले रहा हूँ। तो ये सारे जस्टिफिकेशन है, विद जस्टिफिकेशन। इसी तरह ई प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है, ई प्रोक्योरमेंट के अंदर भी फैक्टर्स आएंगे, तो उस फैक्टर्स को आप लेंगे। ई प्रोक्योरमेंट तो एक बड़ा वो है जी सर, उसके अंदर आप एक स्पेसिफिक वेरिएबल लेंगे, जरूरी नहीं है कि सारा ई प्रोक्योरमेंट आप लेंगे। ई प्रोक्योरमेंट तो बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा, उसमें बहुत बड़ा समंदर है, तो उसमें कुछ उसके अंदर फिर क्या है, समझ आ रहे कि नहीं? तो कीवर्ड लिस्ट ऑफ द कीवर्ड्स का मतलब ये होता है कि हम जब स्टडी करते हैं तो उसके अंदर फिर कीवर्ड्स को निकालते हैं और उसको एक साइड पे लिखते हैं, समझ आ रहे कि नहीं? ये रिसर्च की फॉर्मेट जो है इसमें ये है कि कीवर्ड्स को अलग-अलग निकालेंगे। हाँ, जब आप स्टडी करेंगे ना, रिसर्च आर्टिकल पढ़ेंगे, रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली वेरिएबल्स के नाम पे हैं, समझ आ रहा है कि आपने रिसर्च तो नहीं किया है, लेकिन ये आपको टाइम के साथ ये पता चल जाएगा। असल में ये सारा गेम वेरिएबल्स का है जी, वेरिएबल्स का है। मैं सिंपल एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं ये फाइंड आउट करता हूँ कि द इफेक्ट ऑफ oil prices on quantity demanded of consumer।
एक सिंपल टॉपिक है, आपने सीसीए में डिमांड और सप्लाई बहुत पढ़ा होगा। जी सर। तो ऑयल प्राइसेस का इफेक्ट क्वांटिटी डिमांड पे, अगर प्राइस ज्यादा या कम होती है तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज कंज्यूमर का होता है। समझा रहे कि नहीं? सो अब अगर मैं इसको जनरलाइज करूं कि द इफेक्ट ऑफ प्राइसेस ऑन क्वांटिटी डिमांडेड, तो उसके अंदर मैंने ऑयल ले लिया, अब प्राइसेस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग उसमें आ जाते हैं। लेकिन अगर ऑयल प्राइसेस दें तो इसका मतलब मैंने स्पेसिफिक कर दिया एक वेरिएबल। अब अगर मैं कहता हूं द प्राइसेस ऑफ द इफेक्ट ऑफ प्राइसेस ऑन क्वांटिटी डिमांड, तो क्वांटिटी डिमांड किस चीज की क्वांटिटी डिमांड, किस चीज की प्राइस? गोल्ड की प्राइस, समझा रहे कि नहीं? ऑयल की प्राइसेस, कमोडिटी की प्राइसेस, मोबाइल की प्राइसेस, लैपटॉप की प्राइसेस, चेयर की प्राइसेस, एसी की प्राइसेस, किस चीज की प्राइसेस? तो मैंने स्पेसिफिक कर दिया कि इफेक्ट ऑफ ऑयल प्राइसेस ऑन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ऑयल प्राइसेस, ऑयल क्वांटिटी ऑफ ऑयल, समझ आ रहे कि नहीं? तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ऑयल की बात मैं कर रहा हूं कि अगर प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उसकी वजह से कंज्यूमर की डिमांड पे क्या असर पड़ता है, कंज्यूमर की डिमांड पे क्या असर पड़ता है। सो इसके अंदर फिर ये वेरिएबल ऑयल प्राइस एक वेरिएबल हो गया, समझ आ रहे कि नहीं? ये एक वेरिएबल है और क्वांटिटी डिमांड जो है ये दूसरा वेरिएबल है। तो बेसिकली इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान मैं रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहा हूं या इफेक्ट फाइंड आउट कर रहा हूं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? इसी तरह इस टॉपिक में भी आप देखिए ई प्रोक्योरमेंट इज एक वेरिएबल है, समझ आ रही है कि नहीं? और ये दूसरा सप्लाई चेन परफॉर्मेंस दूसरा वेरिएबल है। लेकिन बाज वेरिएबल डायरेक्ट वेरिएबल होंगे रिसर्च में, याद रखिए रिसर्च में जिस तरह ये डायरेक्ट है, इसमें क्लियर कट बात है कि ऑयल प्राइसेस है और क्वांटिटी डिमांड ऑफ कंज्यूमर है, डायरेक्ट बात है, ये डायरेक्ट वेरिएबल आपको पता है। बाज रिसर्च टॉपिक्स में डायरेक्ट वेरिएबल का जिक्र नहीं होगा, एक वर्ड उसने यूज किया, उस वर्ड के अंदर बहुत सी चीजें आएंगी। अब ई प्रोक्योरमेंट है ना, ई प्रोक्योरमेंट के अंदर बहुत सी चीजें, ये जब पेपर में देखूंगा तो पेपर के अंदर मुझे पता चलेगा कि ई प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है, उसके अंदर उसने क्या लिया है, ई प्रोक्योरमेंट में उसने क्या क्या चीजें ली है। इसी तरह सप्लाई चेन एक बहुत बड़ा समंदर है, तो उसमें से कौन से फैक्टर उसने लिए, कौन से वेरिएबल्स लिए। तो रिसर्च का जो हम इम्पैक्ट या रिलेशनशिप या उसका रोल या उसका इफेक्ट हम मालूम करते हैं ना रिसर्च में, तो बेसिकली ये लड़ाई जो होती है वेरिएबल्स के दरमियान होती है और उन वेरिएबल का एक का इफेक्ट दूसरे पे, दूसरे का इफेक्ट तीसरे पे, और ये मालूम करते हैं कि उसका क्या होगा, रिसर्च इस पे करते हैं। सर मतलब ये है कि कुछ फैक्टर पर ये असरअंदाज होंगे एक वेरिएबल, कुछ पर नहीं होंगे, कुछ पे ज्यादा होंगे, कुछ पे कम होंगे, कुछ पर एडवर्स इफेक्ट होंगे तो कुछ बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, यही मेरा मतलब है, रिसर्च में ये है। तो फिर आपने ये देखना है कि कौन से वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट हैं इस कंट्री में। सारी दुनिया की इकोनॉमी डाउन है आजकल, लेकिन पाकिस्तान में कौन से फैक्टर्स है, कौन सी चीजें हैं जो इसको अगर इंप्रूव करें तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी इंप्रूव हो सकती है। अमेरिका के लिए और फैक्टर्स होंगे, उसके लिए कोई और चीज होगी कि उसकी वजह से उसकी इकोनॉमी इंप्रूव होगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिकली क्या होंगे, पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, समझे मेरी बात आ रही है कि नहीं? तो इसलिए हम ये रिसर्च जो होती है, जो चेंज होती रहती है, हर नेचर ऑफ रिसर्च जो है वो चेंज होती रहती है, पाकिस्तान के हिसाब से अलग है। अब देखिए फिर पाकिस्तान है, फिर पाकिस्तान के अंदर फिर प्रोविंस है, और प्रोविंस के अंदर फिर डिस्ट्रिक्ट्स है, और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फिर यूनियन काउंसिल है, यूनियन काउंसिल के अंदर फिर विलेजेस है। तो ये सारे, और विलेज के अंदर फिर कंज्यूमर है, हाउस होल्ड्स है, और हाउस होल्ड के अंदर फिर डिफरेंट, हर एक हाउस होल्ड का डिफरेंट मिजाज है, डिफरेंट टेस्ट है, डिफरेंट इनकम है, डिफरेंट कंजम्पशन है, समझ आ रहे कि नहीं? तो इसी तरह डिफरेंट विलेजेस का डिफरेंट वो तरीकेकार होगा, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स का डिफरेंट होगा, और सूबों का डिफरेंट होगा। पंजाब का अलग सिचुएशन है, हमारा अलग है। इसी तरह कंट्री को फिर इसको देखिए, इंडक्टिव डिडक्टिव मैंने उस दिन आपको बता दिया था कि पाकिस्तान से, दुनिया से लेकर पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान में प्रोविंस में फिर आपके पास डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिर यूनियन काउंसिल, और यूनियन काउंसिल के अंदर फिर विलेजेस, और विलेज के अंदर फिर वो इस तरह से। और अगर इस साइड से हम शुरू करें कि हाउस होल्ड, और फिर विलेज, और यूनियन काउंसिल, और फिर डिस्ट्रिक्ट, और फिर प्रोविंस, और फिर कंट्री, और फिर इंटरनेशनल, तो ये है। तो इसी तरह है कि आपने रिसर्च को किस तरह, किस नेचर से लेना है, नेचर ऑफ रिसर्च आपकी क्या है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं?
क्लियर है कि नहीं? तो इसी तरह ये जो मैंने आपको सिंपल एक एग्जांपल बता दिया, इसी तरह ये भी है कि ई प्रोक्यूरमेंट और सप्लाई चेन परफॉर्मेंस क्या चीज है। तो सप्लाई चेन परफॉर्मेंस अलग एक वेरिएबल है और ई प्रोक्यूरमेंट अलग एक वेरिएबल है। समझ आ रहा है कि नहीं? उसके अंदर जब आप उसको पढ़ेंगे, जब आर्टिकल उसका पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो इस टॉपिक से, लेकिन इस टॉपिक से हमारा आइडिया क्लियर हुआ कि ये क्या चाहता है। सर मेरा एक टॉपिक है, मतलब मैंने किसी थ्योरी से नहीं लिया है अपना, मैंने सोचा है इम्पैक्ट ऑफ लीडरशिप स्टाइल ऑन ब्रांड जनरेशन। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है लीडरशिप, आप क्या कहते हैं कि लीडरशिप स्टाइल है और ब्रांड जनरेशन, मतलब जो बिजनेस ब्रांड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि टॉपिक सिलेक्शन ये भी है कि टॉपिक तो आप सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन आया उस पे डेटा अवेलेबिलिटी हो सकता है कि नहीं, आप उस पे डेटा किस तरह कलेक्ट करेंगे। बात चीजें पे आप वो आपका एक्सेस नहीं है कि आप डेटा कलेक्ट करें। बात चीजें होती है क्वालिटेटिव, बात चीजें होती है क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव चीज तो ठीक है, डायरेक्ट आपको मिल सकेंगे, लेकिन क्वालिटेटिव चीजों को किस तरह फिर आप उसको न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करना। रिप्रेजेंट सर तो करेंगे। इसके लिए मैंने जो केस स्टडी लिया है, मतलब पाकिस्तान रेलवे और पीआईए पाकिस्तान, इसका जो तो इसमें आप क्या करेंगे, लीडरशिप स्टाइल से आपका क्या मुराद है? इसका ब्रांड पर क्या असर होते हैं, मतलब ब्रांड जनरेशन, मतलब ब्रांड पर कितने असरअंदाज होते हैं ये। तो इसका मतलब क्या है, आप किस तरह डेटा लेंगे? लेट सपोज अगर आप मुझसे, मैं पीआईए में हूँ, जी सर। पीआईए आपने लिया है ना, जी सर। पीआईए में मुझसे आप डेटा लेंगे तो आप क्या कहेंगे, डेटा आप किससे लेंगे? मतलब ये कि यहाँ की Discussion करते हैं ना, जो लीडरशिप स्टाइल जो है ये अथॉरिटेटिव स्टाइल है, मतलब तो इसकी वजह से इसका ब्रांड जो है आए दिन मतलब गिरते जाते हैं, मतलब नहीं सारे तो वो नहीं होंगे। जी सर। जहाँ मतलब नहीं, डेटा आप कहाँ से लेंगे, किससे लेंगे ना, किसी से डेटा लेंगे ना। यस सर। तो कहाँ पीआईए में जो लोग जॉब करते हैं मैनेजर पोस्ट पे, जो उससे आप डेटा लेंगे, जी सर। ऐसे लेंगे ना। जी सर। उनसे आप क्या पूछेंगे? मैं आपसे सिर्फ वो डिस्कशन भी क्लियर करूँ ना कि आपकी वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ, तो यही है ना लीडरशिप स्टाइल। आप कह रहे हैं ना कि लीडरशिप स्टाइल कितने हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3-4 स्टाइल होने चाहिए होते हैं, मतलब कि अथॉरिटेटिव स्टाइल होते हैं, ऑटोक्रेटिक स्टाइल होते हैं, मतलब सुपरवाइजरी कोऑपरेटिव स्टाइल होते हैं, हाँ, और एक वो होते हैं जो मतलब let's suppose- ट्रांजैक्शनल लीडर होते हैं, बिल्कुल मतलब कि वो काम ही नहीं रखते सही। लेट सपोज वी ऑल आर पीआईए एम्प्लॉइज एंड Yes, वी sir. ऑल आर मैनेजर, लेट सपोज, यस सर। and you are the scholar, you may ask question from all these managers, BI managers. यस सर। So what are your first question? मैं उनसे ये पूछूंगा कि आप जो मतलब फ्यूचर प्लान बनाते हैं या कोई फ्यूचर स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो नहीं, इसमें इसको आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि मैं वो हूँ, कितने स्टाइल्स हैं? 4 स्टाइल। 4 हैं। एक क्या है, ऑटोक्रेटिक। यस सर। अब मैं ऑटोक्रेटिक हूँ, ये जो है क्या है, डेमोक्रेटिक है। ये क्या है, ये मतलब ट्रांजैक्शनल। हाँ, ट्रांजैक्शनल। ये सुपरवाइजरी मतलब सपोर्टिव स्टाइल स्टाइल में आता है। ठीक है। जी सर। तो वी ऑल आर डिफरेंट। वी आर नॉट डिफरेंट। समझ आ रहा है कि नहीं? मैं ऑटोक्रेटिक हूँ, ये डेमोक्रेटिक है, यस सर। ये सुपरवाइजर है, यस। ये ट्रांजिशनल है, और वो कुछ और है। चलो ठीक है, वो कहते हैं मैं इसमें इन चारों में से कोई भी है भी नहीं, मतलब ऑप्शन में नहीं आता। एक ऑप्शन होता है ना, डी ऑप्शन होता है, नन ऑफ देम में वो आता है। चलो, तो इसको आप किस तरह इंटरप्रेट करेंगे या किस तरह उसको मैनिपुलेट करेंगे इस क्वेश्चन को, कि मैं मुझसे आप पूछेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 एक मैं एम्प्लॉय हूँ, लेट सपोज आपने 50 एम्प्लॉय से डेटा कलेक्ट करना है, तो नंबर फर्स्ट एम्प्लॉय मैं हूँ। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आप कौन से स्टाइल के लीडर्स हैं, ये पूछेंगे ना, और मैं कहूँगा कि मैं ऑटोक्रेटिक हूँ। समझ आ रही है? सर यहाँ मतलब मेरा मतलब ये है कि यहाँ जो स्टाइल है वो अथॉरिटेरियन स्टाइल है, मतलब टॉप लेवल पर वो जो प्लान बनते हैं और डाउन लेवल से इसमें वो नहीं लेते, मतलब उनका आइडिया नहीं लेते, तो जो मतलब वो कहेंगे वो लोग करते हैं, फिर इसके रिजल्ट में जो बिजनेस है डे टू डे वो डाउन होते जाते हैं।
सही है। तो आप जब डेटा कलेक्ट करेंगे, रिसर्च में ये है कि आप जाके कंसर्न बंदे से डेटा कलेक्ट करेंगे। ये जब फिर डेटा कलेक्ट करेंगे और उसका रिजल्ट आएगा और फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू, उसको फिर आप एक्सप्लेन करेंगे, तो उसके बाद फिर पता चलेगा कि आया ऑटोक्रेटिक उसका इफेक्ट है कि नहीं है। जी सर। समझ आ रहे कि नहीं? आप कहते हैं ना कि लीडरशिप स्टाइल्स का इफेक्ट हम मालूम करें ब्रांड जनरेशन में। जी सर। समझ आ रहे कि नहीं? तो उसका इफेक्ट है कि नहीं है? जी सर। समझ आ रहे कि नहीं? ये तो डेटा कलेक्शन के बाद फिर पता चलेगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये इस पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस पे आप रिसर्च पेपर वो देख लें, आर्टिकल देख लें, फिर मुझे आप बता के आपके पास अगर मोबाइल पे डाउनलोड हो, लैपटॉप पे डाउनलोड हो या प्रिंट निकाल सकते हैं किसी जगह पे, तो वो ले आए, आप भी ले आए इस पे। तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि अगर आपने इस टॉपिक पे कुछ करना है तो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें ये चीज़ें कर लो और इस पे तो आपका एक टॉपिक सेलेक्ट करो। ये बहुत मुश्किल काम है कि आप इस 6 मंथ में ये कर लेंगे। समझा रहे कि नहीं? ये तो ठीक है, चलो मैं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर भी आपको दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, आप रट्टा लगा के पेपर दे देंगे मुझे, बस मैं पास कर दूंगा, बात खत्म। समझा रहे कि नहीं? फिर जब आप एंड में रिसर्च करेंगे ना, कोर्स वर्क के बाद 1 साल के बाद, 1 साल कोर्स वर्क है ना, 2 सेमेस्टर कोर्स वर्क है और फिर 1 साल रिसर्च है, और सुपरवाइजर आपको अलर्ट हो जाएंगे तो वो कह रहे ये इस बंदे को तो ये पता नहीं है कि टॉपिक सिलेक्शन रिसर्च पेपर क्या होता है, रिसर्च तो आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी में है क्या पढ़ा है। समझा रहे कि नहीं? तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का मतलब यही है, इसका मेरा एम यही है कि आप इतना सीख ले कि कम से कम आप टॉपिक खुद सेलेक्ट करें, और कल आप भी सुपरवाइजर होंगे किसी के, कल फिर आप लोगों के लिए टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, लोगों को आप समझाएंगे कि इस तरह करो, इस तरह करो। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो जो चीज आपने करनी है तो आप इस पे कर लें, तो आप ले आए, लेकिन इस पे रिसर्च पेपर आपने रिसर्च पेपर देखा इस पे वो रिसर्च पेपर ले आए, मैं आपको ताकि सकड़ी दी। So, impact of supply chain practices on the performance of organization. The supply chain कम practice से की organization में सर हाँ सवाल थी। ठीक है, इस पे भी पेपर ले आए, इस पे भी पेपर जो आपने, ये तो किसी पेपर है, रिसर्च पेपर आपने देखा है, तो इसी को थोड़ा नोट किया। हाँ प्रिंट निकाल दिए, बस इसको मैं फिर इंडिविजुअली, क्योंकि क्लास के अंदर फिर ये काम शुरू करेंगे तो फिर लेक्चर का वो हो जाएगा, तो मैं हर एक बंदे को इंडिविजुअली खैर 5-5, 6, 10 मिनट दूंगा। ठीक है, उसका अपना, क्योंकि आपका टॉपिक अलग है तो आपके अलग एरिया है, इसका अलग है तो इसका अलग है, इसका अलग है, तो इसलिए ये जो रिसर्च सुपरवाइजर होते हैं हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट होता है, क्योंकि इसका अलग अलग होता है ना, दोनों सबको इकट्ठा नहीं बिठा सकते कि आप सबको पढ़ा है। समझ आ रहे कि नहीं? हर एक बंदे का, तो ये मैं आपको फिर अलग अलग खैर टाइम दे दूंगा कि आप उसमें क्या कर सकते हैं। सर ये फाइनेंस में हम फाइनेंस अकाउंटिंग के टॉपिक ले सकते हैं, लेकिन फाइनेंस में फाइनेंस का ये है कि टाइम सीरीज डेटा ज़्यादा यूज़ होता है, और उसमें आपने देखना है कि उसके मॉडल ज़रा मुश्किल होते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि फाइनेंस में लोग मुश्किल काम बंदा करें। समझ आ रहे हैं कि जो समझ, हाँ जी, un dato poco, un dato una literature news faculty minimum. ये रच एमएसके का ना कम से कम चित्ता सारे ये 10-15 रिसर्च पेपर 15 अप टू 15 रिसर्च पेपर्स होता सारे, जो 15 जरूरी है चिस्ता टॉपिक सारे दी आगे समझता यो रिसर्च पेपर भी आगे दस्ता बेस पेपर मींस के द टॉपिक यू हैव सेलेक्टेड 99% या 90% या 80% रिलेटेड टू दैट पेपर, सो दिस इज योर बेस पेपर। Also comparison from the research guys, you know, comparison policy, comparison those topic is not college like a private sector hospitals chigam di a public थी, but it one performance के सफर के लिए शिकाना development countries के policy लगता है डेवलपमेंट करने पेशावर के होगा, पेशावर के तो प्रोविंस की पेशावर के कंपैरेटिव स्टडी बस्ताशी तब कंपैरेटिव स्टडी ऑफ तब systemic review of performance का systemic review of performance of public and तब the words game दिखे, the words प्रॉब्लम पे चेंज होगा ना, सही है होता है जैसे कि the comparative study of private hospitals and public hospitals in the the performance, the comparison of performance between private and public sector hospitals in Peshawar KPK। तो शो बोलता तो बे प्रॉपर यो टॉपिक दगाओ कर दिया है अगर कि यो टॉपिक सर यो 15 राउडी को बताने पक्षे नुदी तब कंपैरेटिव स्टडी हुई तब ब्यास हॉस्पिटल्स द प्राइवेट असले और सब द
public. पब्लिक उसका वो वेरिएबल चीज सब तो पूछना चाहिए कम तो प्राइवेट ना की और तो पूछना चाहिए सरकारी ना की वहां तो खपलो की कंपेयर के दाना बड़ा डेटा कलेक्ट किया हो बे तो कंपेयर के रिजल्ट में पता ले कि शेरा प्राइवेट और दवा के दाई परफॉर्मेंस से सफर थे और रीजन बनता था पता ले कि सर रीजन दवा चाहिए सबे कोलिश है नहीं कोलिश जब रिसर्च मीन दा से नहीं कि सिर्फ इफेक्ट ना रिलेशनशिप मालूम होनी चाहिए लका तदे यो किसी चीज रिलेशनशिप मालूम है कि लका फॉर एग्जांपल दे रूबा से ना रिलेशनशिप रूबा से रिलेशनशिप हम रोतरी स्टेशन सही शो मदास ता कम कसम ना गली दी दोनों फेदोर हो चला कम से कम तासो पदे बंदे और दिस इज किने न्यूज़ है बा रिसर्च पेपर से नहीं कहना तो खूब की बदे खूब नॉमी ما بيوريس يو ريسيرش بيبر ما بيوريس उस जरूरी दा यो रिसर्च पेपर उसका बेस्ड रिसर्च दे सारा रिलेटेड नोन हुई देखिए बिया वेरिएबल्स दास तो खबर है वेरिएबल्स ओपन की गिना ओपन की गिना बाद इस दे ची डाउनलोड की बस नोट इन द बस इन्हों दे ची आली दा ना जो कम से माने कम वेबसाइट वाली दी अपलोड की आती वापस दी बिया पाती नो बिया चित्र कर एक्सेस की नो तब बिया चित्र क्लिक की नो तब बिया ओपन की दी ना ये जाई रिमूव कर दी दा टॉपिक तो बल से कि बल चित्र अप्रूव थी बल से कि बचा अपलोड कर दी यो वेबसाइट होने देखा ना गूगल को चित्र और कि गूगल की दुनिया वेबसाइट राश क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन भी करना तासो टोल चिकम कसम कार कर दे तासो बदा रिसर्च पेपर्स रोड़े और देखियो बिया फर्दर बोल ची दा वो जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट थे जे हाउ टू सेलेक्ट अ टॉपिक नमदी किला प्रति कि हाउ टू सेलेक्ट अ टॉपिक अच्छा अब आपकी जो टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है लेट सपोज इसने लीडरशिप स्टाइल और ब्रांड उसका क्या है ब्रांड जनरेशन इसके दरमियान इसने बीफ रिक्रूटमेंट और सप्लाई चेन परफॉर्मेंस और इसका क्या है सप्लाई चेन प्रैक्टिसेस और इसका इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस पे और इसका जो कंपैरेटिव स्टडी है प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स की परफॉर्मेंस का तो आपने ये टॉपिक्स आपने सेलेक्ट कर दिए सो ये टॉपिक आपके ज़हन में किस तरह है ये एक प्रॉब्लम है आपने फील किया इस प्रॉब्लम को आपने ऑब्जर्व किया इस प्रॉब्लम को क्योंकि आप उससे रिलेटेड है आप उससे रिलेटेड है आप उससे रिलेटेड है आप उससे रिलेटेड है आपका इंटरेस्ट उस पे है आपने ये फील किया कल लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपके ज़हन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है क्या इशू आ रहा है आपने उस अपने एरिया में देखे अपने स्टडी एरिया में देखे जो आपका एरिया स्टडी है वहां पे देखे तो आप लोगों ने सारा ने सोच लिया और एक एक टॉपिक ले आए तो उसके अंदर फिर उसको हम क्या कहते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप फिर उसको लिखते हैं कि because of this we select this topic because of this समझ आ रहे हैं तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है एक स्टेटमेंट मींस एक थ्योरेटिकल फॉर्म में कोई चीज लिखना समझ आ रहे कि नहीं और प्रॉब्लम स्टेटमेंट किसी प्रॉब्लम का इशू का आप क्या सलूशन निकालते हैं समझ आ रहे कि नहीं आपके ज़हन में ये है कि ये प्रॉब्लम है और इसका सलूशन क्या हो सकता है समझ आ रही है तो इसको हम क्या कहते हैं द फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम तो सिंपल ये है कि डिफिनीशन इसको अगर आप स्टडी करें तो ये तो आसान है लेकिन डिफिनीशन उसका क्या है द रिसर्च प्रॉब्लम इज अ स्टेटमेंट अबाउट एन एरिया ऑफ कंसर्न एरिया ऑफ कंसर्न क्या है अ स्टेटमेंट अबाउट एन एरिया ऑफ कंसर्न आपने स्टेटमेंट लिखे है ना प्राइवेट और उसमें पब्लिक हॉस्पिटल में क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसकी परफॉर्मेंस में क्या है आप ये एक आपका कंसर्न एरिया कंसर्न क्या है प्राइवेट हॉस्पिटल और पब्लिक हॉस्पिटल उसका जो है ई रिक्रूटमेंट और वो है इसका लीडरशिप स्टाइल पे है उसका ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस और प्रैक्टिसेस पे है सप्लाई का समझ आ रहे कि नहीं तो ये आपके क्या कंसर्न एरिया है the research problem is a statement about an area of concern a condition to be improved means कि ये प्रॉब्लम हमने फील कर दी कि यहाँ पे प्रॉब्लम है और उसको हम इंप्रूव करना चाहते हैं तो क्या होगा टू बी एलिमिनेटेड डिफिकल्टी टू बी एलिमिनेटेड और डिफिकल्टी टू बी एलिमिनेटेड कि प्राइवेट में उसमें क्या प्रॉब्लम ऐसी कोई सी चीज है कि प्राइवेट का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है और पब्लिक का कम है तो उसको हम किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं उस डिफिकल्टी को किस तरह एलिमिनेट कर सकते हैं प्रॉब्लम आ गया ना मेरी बात समझ आ रही है ना सिंपल है यस सर इंग्लिश भी सिंपल है कोई वो नहीं है आर ये दूसरा एग्जांपल आर ट्रबलिंग
क्वेश्चन दैट एग्जिस्ट इन स्कॉलरली लिटरेचर, ऐसा क्वेश्चन जो हमें मजबूर करता है, ट्रबलिंग, समझ आ रहे कि नहीं, हमें मजबूर कर देता है कि इसको हम स्टडी करें। उस लिटरेचर रिव्यू में एक क्वेश्चन आ जाता है ना, लिटरेचर रिव्यू क्या है, आप अखबार पढ़ रहे हैं, सर रात लेकर ना यो स्टडी अखबार हुए थे, अखबार किया भाई यो सर्टिस सुचिया था पाकिस्तान की चीजें, लेट्स सपोज एक्स चीज दा प्राइसेस बोली जाती है, सही है ना, दा यो अखबार में दा बोली की नहीं सप्लाई रिश्ता पाकिस्तान चीजे सरा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या लेट्स सपोज वीट चीदा शॉर्टेज राजी दा बोली राजी। So this is your literature question, public question. समझ आ रही है ना? तो इसको हम क्या कहते हैं? In a theory, या लेट्स सपोज आपने कोई थ्योरी, एचआर की थ्योरी है, मार्केटिंग की थ्योरी है, फाइनेंस की थ्योरी है, उसमें आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ गया कि इसको सॉल्व करना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? जिस तरह ये डिमांड और सप्लाई इकोनॉमिक्स की थ्योरी है ना, पे करना कोई करना। अच्छा, तो इन क्या फिर क्या है आर, ये सारे आर है, ठीक है, इसमें आर है कि बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं। आर इन प्रैक्टिस दैट पॉइंट्स टू बी needed for many film understanding and deliberate investigation। क्या मतलब है कि या तो हम इस तरह करना चाहते हैं कि कोई टॉपिक या कोई प्रॉब्लम आ गया है और उसका हम एक सही तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और उसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू जिसको हम सॉल्व करना चाहें, उस सॉल्यूशन चाहे और फिर उस पे इंप्रूवमेंट चाहे और उसको फिर क्या करें, सही तरीके से अंडरस्टैंड करें और उसको फिर इन्वेस्टिगेट करें। दिस इज नाउन एज अ रिसर्च प्रॉब्लम। कि किसी भी इशू का अगर हम डिलिबरेटली उसकी सॉल्यूशन चाहे, उसको अंडरस्टैंड करना चाहे, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहे, सो दिस इज नाउन एज, दैट इज नाउन एज क्या, रिसर्च प्रॉब्लम। सर हमारे पास एक रिसर्च प्रॉब्लम ये हो सकती है, मतलब कि ये पाकिस्तान रेलवे और पीआईए हमेशा से मतलब लॉस मेकिंग है, तो हम इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इसको एज रिसर्च प्रॉब्लम ले सकते हैं। व्हाट आर द फिर आप इसको क्या किस तरह कहेंगे कि व्हाट आर द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस यस द पीआईए डिफॉल्टर्स या पीआईए डिफॉल्ट टाइम डे बाय डे, या तो फिर उसको वर्डिंग की, रिसर्च की वर्डिंग है तो उसके लिए प्रॉपर फिर वर्डिंग है, लेकिन ये आप इसका आपके जहन में ये क्वेश्चन है, या रेलवे और पीआईए में क्यों है, या स्टील मिल्स का मसला ये जो था, ये सारे क्वेश्चन है, दीज आर द इश्यूज, दीज आर द प्रॉब्लम, इस पे लाखों लोग रिसर्च कर रहे हैं। इसको हम ये इशू ले सकते हैं, मतलब इस पर रिसर्च कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेडिकल साइड पे देखे जितने भी आप कह रहे हैं ना, ये मेडिसिन जो आ रहे हैं, ये मेडिकल फील्ड, ये सारा रिसर्च होता है। रिसर्च का मतलब ये जब नया इन्वेंशन आ जाता है मार्केट में, तो और वो कहते हैं ये रिसर्च है। रिसर्च मींस कि इस पे काम हुआ है और ये प्रॉब्लम था, उस पे काम हुआ है, और फिर आगे अगर वो कामयाब हो गया तो हम उसको फिर कन्वर्ट करते हैं एज अ थ्योरी, उसको एक कांसेप्ट, एक लॉ के फिर इसके लिए हम सर हम वो कंपैरेटिव स्टडी, मतलब इसको प्राइवेटाइज में रखना चाहिए या इसको पब्लिक में रखना चाहिए, ये भी कर सकते हैं। जब आप उसको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं तो उसकी क्या रीजंस हो सकते हैं, क्यों करते हैं। अगर उसको आप ये है कि बात सोचते हैं, मतलब बात लोगों का ये सोच है, जिस तरह आपने लीडरशिप की स्टाइल की बात की ना, ये डिपेंड करता है लीडर पे। बात हो सकते है ऐसा कोई बंदा आ जाए कि उस पीआईए को सेट करे गवर्नमेंट के सेटअप में, इसमें इंप्रूवमेंट ले आए, और वो बात कहते हैं नहीं मैं इसमें नहीं कर सकता, इसको प्राइवेटाइज करो। समझ आ रहे कि नहीं? तो ये तो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा आइडिया है। हर एक बंदे के पास एक फ्रेमवर्क होता है ना, फ्रेम लाइन होता है, कि अगर उसका फ्रेम लाइन ये है कि वो चाहता है कि मैं इसी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको मैं इंप्रूवमेंट ले आऊं, और एक कहता है बंदा कहता है कि नहीं एग्जिस्टिंग सिस्टम को खत्म करो, दूसरा एक सेटअप स्टार्ट करो प्राइवेट, उसको एक वो शेप दे दो, ट्रांसफॉर्मेशनल। हाँ समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो डिपेंड करता है, जरूरी ये तो आपकी सोच पे है, लीडरशिप की उसके उस पे है कि आपके जहन में क्या आइडिया है। हर एक बंदे ना, नवाज शरीफ आता है तो वो अपनी स्टाइल से अमल चलाता है, जरदारी का अपना स्टाइल है, इमरान खान का अपना स्टाइल है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये उसके डिफरेंट वो है अप्रोच। इसमें हम भी कोई सोल्यूशन तो देंगे, मतलब रिसर्च कर रहे हैं तो इसको हम मतलब ये कह सकते हैं कि आप इसको प्राइवेटाइज करें कुछ, मतलब फैक्टर के बिहार पर हम इसको मतलब देखिए जब जो भी बात आप करेंगे ना, जब हम जो इन स्टडी या इन रिसर्च अगर जिस चीज़ को आप क्रिटिसाइज करेंगे ना तो फिर आप सोल्यूशन भी देंगे।
और जो सोल्यूशन देंगे विद जस्टिफिकेशन है कि जस्टिफिकेशन अगर आप उसको कह दें कि ये सेटअप नहीं चल रहा तो उसको आप प्राइवेटाइज करें तो वाई पहले क्वेश्चन आते हैं ये लोग पूछेंगे कि वाई प्राइवेटाइज करें ये तो गवर्नमेंट का एसेट्स है सर तो कम हॉस्पिटल की जॉब हम प्राइवेटाइज की हाँ एड रहा है बार के कल को हम मंत्री कम हॉस्पिटल देंगे क्या रोल की 58 भी एडवर्टाइज करी थी 58 हॉस्पिटल्स मतलब एमटीआई टाइप शी MTA टाइप की मतलब कमीशन जी कम एम्प्लॉइज दी لو بكي او تزبط اذا بكي كان يوم بضغط حواليك मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट का और चिंता नहीं पकड़ा मुझे ना कोई स्टाफ नो बता आगादीना DG Health रिसर्च ट्रांसफर की डिजिटल हाँ No, मतलब बाकी से कोई no بس ابي بقول تكمل تكون اقول شيء كم तो public हॉस्पिटल के اه हाँ सही ده MSc مسار एमएसए management के मां management side तुम्हारे दा कम हॉस्पिटल एमएसए لو كنت بدنا واحد ديبلي دايركتور ما دي هيلث سلوما ديبلي دايركتور واسمع انا ترانسفور شو دغلت یو هاسپټل دی 400 ضرور باندې پېښور درې ګرون څنګه روان شي خزانه شو ګرمل سره ایمرجنسي سره راځي دا هاسپټل راځي دا څنګه شاید ټول سره وړ هسپتال دی مرکز هسپتال ته وي ها شالم پر سره زده نه ګمان ما دا ته کنه سره شاید ټول سره مرکز هسپتال دی کله کوم مرکز دی زه وایم تخوي سره شرګړی شرګړې اه نو د هسپتال نو پرایټایز کوي ایر ته دا شوی دی اډورټایز ما شوی اصل کې کور والا چې دا ډېر سرجن ده ها اف سی پی ایس اوسو کړو ها صحیح هغه هم به ریفری کې لګیا ده ها کی سی डी ग्रेजुएट्स करना ها ये गवर्नमेंट लिस्ट और आगे चले पर ये गुरपुरा आर सी है ورکوره اخا गुरपुरा की हमारे सी है सर्विस रोड साइड तक كم كان طرف جګړه سره شالق لري जगड़ा सर ना दे सर्विस रोड वाली चीजें करना हाँ। बस शालम दे सर तर اها صحیح उस صحیح पर किनो डिस्कशन ना है नो आगा हम चले आगा ما وته له دا جاب ما بنې کلینینګ ځان له سیټ کا جابونی وابون ستې یو لږ روپیا درکې کنه سم کوشش راوړی دا پر پبلک پاتې شي خو ما وکړه بس اوی پرایویټ کوي نه نو پاکستان کې چې کوم سچويشن روان دی یونیورسيټي کې زه اګریکلچر یونیورسيټي کې د جاب پر خودو ته تیار کړی ګورنمنت جاب ته پر دا چې دا کې ډیره سرکاري سکولونو استادان پرمننت کدا دي سره نمبر اپورټس ته چې دا غریبانان خلک دي خرچه پرنه د یو سړی په 25000 روپے جاب کوي نو 40000 یا 30000 تنخواه شمه چلو شو او هغه خلک چې دي د غریبانان خلک پیدا خپل ورول هغه سړي سره لاس کسان نور او هغه تعداد کې 58000 کسان هغه کسان یې څه کوي چې د نمبر اپورټس ته پی ټی آی زیات شي اوس یونیورسيټي کې 3-4000 امپلایز په کنټراکټ باندې لس کار کوي اوس په هغه جاب پرمننت دي دی کنه 4000 پیسې دي ها صحیح 58000 په مقابله کې 4000 یې سم دي او ځکه چې 4000 از نثینګ د 4000 فیملی نه 58000 خلک یې ورول کړل پوه شئ د یونیورسيټي دونه حالات خراب دي چې هغه هم متوي چې خپل غټه خپل خوري بس موږ نه نه اوس یو ټي ټي ایس سیستم او په چې په پی جی یو کنه هغه بیا د نه پلی سیستم دی ټي ټي ایس په دی یو پی بی ایس سیستم دی یو ټي ټي ایس سیستم څنګه چې تاسو یو ایم ټي آی یو دا ریګولر ها نو دې کې په یونیورسيټي کې هم یو ټي ټي ایس او یو پی بی ایس نو ټي ټي ایس بدل چې ټي ټي ایس کې پنشن نه څنګه چې ایم ټي آی کې پنشن نه نو هغه تنخواه ډبلې زیات مطلب چې ته په ریګولر باندې 1 लाख اخلي نو باید د 2 लाख ها صحیح ده کنه خو پنشن بدلی نو هغه ټي ټي ایس سیستم دا چې هغه لکه بیسیک پے بتاله یونیورسيټي کولا او باقي چې کوم د نور پیسې دي 2 लाख بتاله کول 1.5 लाख تعالی یا 50 یا 60000 یا 70000 بس بیسیک پے او دا بتاله یونیورسيټي کولا او باقي چې د نور دا بتاله چې سي دا کولا اوس چې سي دا اناونسمنت کو چې نو مور ټي ټي ایس مونږ نو نشي فور کولای نو سي ټي ټي ایس باندې کوم چې کوم غریبانه نه پی جی یو کی فرش پی جی والی تلاله باندې شو अब څه کوي نو هغه د ټي ټي ایس نشته یونیورسيټي کې جاب نشته یونیورسيټي فاینانشل کرایسس کې بچل سکول ټیچینګ باندې چې ته یو پی ایچ ډي یو ریسرچر ته لګي په سکول کې لګیا دی ټیچینګ کوي نو ټیچینګ کو د اف ای والا مخکې کولی شو د بي والا کو دا لګي سی سی ای کې او دیم ټیچینګ کوي نو بیا فرق څه شو دا ملک بس الله دې رحم وکړي تبعه طرف ته روان دی لکه صدا وایم کنه تبعه طرف ته روان دی نو ډیر شنو داسې دي چې لکه هغه چې کوم اوس کوم کیږي دا کوم پالیسی دی جوړي او ډیسیژن اخلي هغه ټول اگینست لکه ته لګي ته خپل پر یاد کې د هاسپټل کې دې په دې پر یاد کې نه هسپتالونو پرایویټ کې ته په دې کې چې سکول چې سکول حالات خراب کنه آپ بینک لګیا یو بینک سټیټ بینک کې لاندې کوم سره پیسې نشته بونډز خلک وغوښتي دا غي کو اندازې نو بس یې پیسې نشته
نو خبره دا ده سیم بجټ کې بند کو وې د سي نشته دا یعنی موږ اوس نشو راستي بجټ بند خزانه کې پیسې نشته ما خو چې معنی زه خو لکه په دې حق کې زه خپل ملک پر حدود تیار یم زه خو یم چې ملک پرېږده د دې عمدې ملک ته راوړم دا نه چې بیا خو یې سره خو بهر چې څونه پیسې دلته چې ستاسو په ټول کې دي څونه ګټې که نه هلته 5-10 years کې وګټو واپس دلته راشي انویسټ کړه بس خبره یو دوه غریبانو کسان له جاب هم ورکړي او سرکار هم د هغوی پرې کار روان دي او ستا هم کار روان دي نو ریلیکس لایف په دې او جاب په نن سبا خو جاب ډېر ټف شو ځکه چې تا تنګوي که نه بعضې ټایم هغوی پیسې ګورمنټ سره نشته نو هغوی وایي چې تنګ یې کوي چې ډېر خلکو ته د تنګوالي توجه شي لکه اوس دا څه دي ما د ښکاري په 8 تاریخ کې په 9 تاریخ کې سیلري واخیسته ګورمنټ امپلایز په 9-10 تاریخ ځکه چې ګورمنټ سره پیسې شته او د هغه نه چې افیس نه راغلي پاش سوچ کاوه نو ډېر شي داسې پرابلمز روان دي چې لکه د ملک اوس خو پکې دا ایشوز دي ټول ریسرچ دی ټول ریسرچ خره چې سی باندې چې اجکل کسان چې وایي دا لکه پیچ ویلا هاي پیسې مونږ شته او هغه څه هغه څه کې ډېر خلکو ریکورینګ نشي کړی دا ملک داسې ملک دی چې چا وخوړو بس چې چا وخوړو د هغه دی داسې خلک تللي دي زموږ د اګریکلچر یونیورسټۍ نه په 2007-8-9 کې پیچله انګلینډ او امریکا ته تللي فل برایډ سکالرشپ چې 1.5 کروڑ روپۍ په یو کس خرچه راځي او دلته یې جابونه هغه تنخواه به یې وغوښته 1.5 کروڑ روپۍ والا هغې څلورو کالو کې هغې ته پیم کړي او هغه کسانو پي ایچ ډي ونه کړه هغې ته پټ شول هغې ته کې مطلب میرج وکړو امیګریټ دغه خو د نیشنل ډیمیشنټ یې واغوښته دلته پاکستان ته رانغی اوس ورته دوی وایي چې هغې هلته کې ورپسې لیټر ولېږه چې به موږ جاب ورکړو هلته په جاب څه کوي هغه هلته کې نیشنل ډي واغوښته د انګلینډ نه چې ته راځي او د افریقې نه چې ته راځي نو اوس ورپسې دوی لیټر کړي چې هغه پیسې واپس کړي چې کوم 1.5 کروڑ روپۍ نو په زرګونو خلک دي نو دا ډېرې پیسې دي نو اوس یې پیسې د ملک خوړلې دي پي ایچ ډي ډیګري یې وروړله رام نه لري سروس یې پرېښوده وته یو کې خوشحاله چې سروس کړي دي ځکه چې سروس واغې سره شته نه لکه حالات خراب دي خو لکه دوی وایي چې 1.5 کروڑ روپۍ د کومې نه ګولې دي هغه وروړه که نه یا ډیګري وروړه مونږ ته جمع کړه ډیګري راته وښایه چې دا په دې پیسو مې دا دلته چې هغې نه هم تپوس کېږي چې کله اډټ کېږي خو به تپوس کوي که نه چې دا کسان مونږ لېږلي څومره کسان کوالیفاید شو ګریجویټ شو څومره کوالیفاید دي نو ډېرې خبرې داسې دي مړه چې بس زه به په سوی یم اساسي هغه ټایم پاسې کوو خو زه چې ماشومان ګورم که نه چې دا کوم 6-7 years 10 years او دا ګورم ماشوم زه دې فیوچر ته ګرځم چې دا دغسې کوي زمونږ دا حال دی دا خلک بس کوي نو دې ملک یې هغه بچي پیدا کول هم نه دي پکار زما روډ سټوډنټ دی نیشنل یو اسټرالیا کې یو سټوډنټ دی نیشنل کمپیوټر سافټویر انجینیر دی او دلته کې ګورنمنت جاب دی خو 17 کې ولاړ 2007 کې فری ایجوکیشن او ایو میاشت راغلی او یقینا که پنځه ورځې مخکې راغله په تېښته تللی بله شپه ورځ چې بچي مې دا د خوشحالۍ پورته یې ټوپونه واله باترومونو ته وایي چې خدای بېرته پاکستان ورسي یو لور یو زوی دی چې پاکستان ته بیا نه بس پاکستان سره چې بس میټریک کوي بعد ملګرو ودا کوو بس بچی داسې پکار دی نو ټول خلک 7,65,000 فیملی په 2022 کې امیګریټ شو او دې کې دا کسان دي چې ډاکټرز انجینیرز مطلب پروفیشنل داسې به د یو ټایم راشي د عمل باندې به ټیک 10 کاله 10 کاله پس به یو ټایم واپس راشي دا به ښه شي خو دې ته بیا هغه نه چې څنګه بار ملکونه خلکو ته هغه کریم خلکو ته وایي کړه چې راځئ تاسو له فیسیلیټي درکړو نیشنل درکړو فری د دار سره ملاویږي سټیفن مونږ درکړو ویله کار نه کوي کورونو کې پراته اوسئ پیسې ورکړو پاکستان بیا داسې خلکو پسې چاړي چې ټول کریم خلک ته د انګلینډ په مسله کې باندې چې ترګه جواب کړی خدای له زیاتره ایشین ډاکټر برټش په نو کې کوم دا د خپل هغه سبب نه هغه نه سبب کوي تاسو په کالج په هو یونیورسيټي سبب بچاره په کالج یونیورسيټي کې مڅته کې متر 40 پلس چې وشو 40 پلس اوی په ځای اډمیشن 40 پلس موږ ترکی ته کانفرنس دی 10 ډیز ده ته یې کې نو چې څونه پی ایچ ډي او کوم څونه خلک راغلي خلک کې تقریبا 99% ایشین داخل بالکل خلک انګریزان پکې نو بنگالیان انټرنیشنل بنگالیان انډین او پاکستاني دي ماشاءالله څنګه همدا خلک دې مسلې کې ځکه دا غریب ملک دی دیو چې تعلیمونه کې سبب دی هغه سره په پایله ملک ورته کنه هغه سره په پیسې هغه ګټي او کنه کې کور کې دا غیر سفری دي ایجوکیشن فری دی وتا او تاسو به یې خرچه ملایي لایف سټایل تقریبا ټول یو شان پرایم منسٹر چې کوم لایف سټایل دی راوستان کورول فری ورکې تر کورول فری ورکې مراد ځای ته کوم ملایي دا نه چې په اسلام آباد کې 1 نمبر شي ملایي او په هر کې 2 نمبر شي ملایي نه هلته کې په یو سٹور کې به شي ولړی کې وستا او منسټر باندې کې او د نشي داخله وتا ونه
نو هغه د ایکوالټي دغه بالکل ایکوالټي دونه راوسته چې هغه د ګیم مې کړی دلته کې دونه ګیم ته زه د فرایډې پرز راغلم د ډي جی کې یو ترانسفر د فلایټ چا سره راغلم مونږ چې کوم کس راوستو د ډي جی لیډرو نو بیا روان سم غاړي د غاړي شپ چلولې ما ته ټیک نو هغه سره غاړي اوډي وته وي اوډي 5 ما د دې څه قیمت دی ودی 1 کروڑ 70 लाख रुपए कीमत ان په 1 کروڑ 70 लाख गाड़ी کې لاړو راغلی یو طرف ته خلکو سره دوړو پیسې نشته کنه بیا هغه وی دا سره نسبت دا پرې دا موږ مخ شو गाड़ी فورچونر وی دې 7 کروڑ د 6 کروڑ روپے قیمت دی ګوره په پاکستان سره نو ما وی چې د یو ملک په روډ باندې لکه عام روډ یونیورسيټي روډ یو عام ملک ورپورې خار دی پای د 7 کروڑ روپو गाड़ी په روډ باندې ګرځي نو دې سړی نیټ ورک بسو نه چیرې 7 کروڑ روپو गाड़ी کې ګرځي نو یو طرف ته خدای شي ستې په بل طرف ته چې تو وره غریب سړی ته تو وره ته چې په لار باندې خپه وشي چې وټل ته چې کینو مشمن په بیا اختیار شو سو په دینو خرڅي او سو چې دې هغه خرڅي دا نه چا بچی دی د دې لپاره داسې یو سکول یا دا غټ ملته سکول او کالجونو دا دونه کوي او خلکو بچو دا دونه خلک زکات او قرار دا ورکړي او ډونیشن کوي هزار دا نیازبین دی موږ چاته خدمت دا کلاس نه سره کنه نو دا د لپاره یو د ورشي په کولاو نو دلته خو انسانیت بالکل داسې دی کنه کدي شروع شو مدا خبره کو بیا چې کینو مده باندې د زموږ مشران چې دي نیټونه بډاګر شروع شو ختم شو دا پرابلم سال نشو موږ په داسې شو موږ مړ شو دا پرابلم داسې مول تبا دی او د الیکشن دی او یو دا چې دی الیکشن دی الیکشن مثلا د په ملک هم الیکشن هغه د ټلیفون روبې دی بس اچھا نو ریسرچ پرابلم باندې پېښ وکړه چې ریسرچ پرابلم څه وایي کلیئر شو چې کنه اوس چا ته ویل شي چې ریسرچ پرابلم څه وایي څنګه تاسو دي ریسرچ پرابلم ویل شي اچھا purpose of a problem statement is to چې د دې purpose د سی why we write a problem statement research کې د ټول نه امپورټنت دی دوه شیزونه دي انټروډکشن کې پکې یو دی problem statement سره او یو ستاسو د significance of the study سره او یو research gap ہوتا ہے research gap یہ ہے کہ آپ کا اور اس بندے کا کام میں کیا گیا کیا آپ نے کیا ایڈیشن کی ہے آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے اس کو اتر کنٹریبیوشن بھی کہتے ہیں سمجھا رہے کہ نہیں ریسرچ تو اس نے بھی کیا ہے اور آپ نے بھی کیا ہے لیکن اس کے اور آپ کی ریسرچ میں کیا ایڈیشن نیا چیز کیا ہے ایک پوائنٹ کیا ہے ایک آپ نے ایک آبجیکٹ اس میں ایڈ کیا سمجھا رہے کہ نہیں ایک چیز یہ دوسرا کیا ہے پرابلم سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو بتا دیا جو آلریڈی ہم نے ڈیفائن کیا کہ وداؤٹ پرابلم سٹیٹمنٹ یو ڈیڈنٹ ڈو ریسرچ کہ ریسرچ پرابلم کے بغیر تو آپ کے پاس ریسرچ نہیں ہوتی نا ریسرچ پرابلم بیسیکلی ریسرچ کوسچن اینڈ ریسرچ کوسچن از دی ریسرچ ٹائٹل لاسٹ جو کلاس میں نے بتایا کہ ریسرچ کوسچن کی بات ہم کر رہے تھے کہ جب آپ کے ذہن میں ریسرچ کوسچن آ گیا تو آپ کے ذہن میں ایک ٹاپک آ گیا ایک سٹیٹمنٹ آ گیا کہ اس کو میں نے کیا کرنا ہے ایکسپلین کرنا ہے اس کو میں ایکسپلور کرنا ہے اس ٹائٹل کو میں نے ایکسپلور کرنا ہے ہاؤ ٹو ایکسپلور دس ٹائٹل تو ریسرچ کوسچن سے پھر ٹائٹل بنتا ہے اور ٹائٹل کے اندر پھر پرابلم اور پرابلم سٹیٹمنٹ اسی ٹائٹل کو کہتے ہیں کہ دس از دا پرابلم as a basis of research نہیں تو تم یہ کرنا پرابلم بیس ایشو وہی کرنا دیٹس وائی وی ڈو ریسرچ سمجھ آ رہے تو یہ اس کے لیے کیا ہے پرپز آف دا پرابلم سٹیٹمنٹ تو تین چیزیں ریسرچ کے لیے امپورٹنٹ ہیں ایک ہے پرابلم سٹیٹمنٹ ایک ہے ریسرچ گیپ اور ایک ہے سگنیفیکنس آف دا اسٹڈی how much this study or you select a topic so how much this topic is important for this situation کہ اس let's suppose میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ راستے میں آ رہے ہیں اور آپ کو یہ ایشو لگ رہا ہے کہ گندم کا ایشو ہے تو کرنٹ ایشو ہے نا سمجھ آ رہے کہ نہیں تو تین چیزیں اور ٹاپک سلیکشن کے لیے یہ تو خیر بکش نہیں ہے میں اپنی ایکسپیرینس کے بیس پہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تو بکش چیزیں ہیں بکش لیکن ریسرچ ٹاپک جب آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے ایک سب سے پہلے انڈرسٹینڈنگ کہ آپ کا انڈرسٹینڈنگ ہے اس ٹاپک پہ جس چیز پہ آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو آپ کلیئرلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس کو کنسیپٹ آپ کو اس کے اوپر کلیئر ہے دوسرا یہ ہے ایک کرائٹیریا فار ٹاپک سلیکشن دوسرا یہ ایک انڈرسٹینڈنگ دوسرا یہ ہے کہ
आपका डेटा अवेलेबिलिटी उस पे है कि नहीं, इंफॉर्मेशन उस पे उसके ऊपर मौजूद है कि नहीं। लेट सपोज आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपका आप अंडरस्टैंड भी करते हैं, कंसेप्ट भी क्लियर है, लेकिन उस पे डेटा अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? फिर भी आप रिसर्च नहीं कर सकते। तो फर्स्ट आपने क्या करना है कि अंडरस्टैंडिंग हो, दूसरा डेटा अवेलेबिलिटी हो, और नंबर थर्ड जो है उस टॉपिक जो करंट इशू है, करंटली ये है। ऐसा ना हो कि आप 200 साल पहले वाला पुराना इशू ले आए और उस पर आप नहीं, करंटली एग्जिस्ट करता हो उस जो प्रॉब्लम या जो टाइटल या जो टॉपिक आप सेलेक्ट करें वो करंटली एग्जिस्ट करता हो कि नहीं करता, समझ आ रहा है कि नहीं। तो पुराना नहीं, लेट सपोज मैं अगर इस तरह करूं, बहुत से लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं ना कि 2005-6 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, अभी भी फाइनेंस वाले इस पे रिसर्च कर रहे हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है। कोरोना आया था, उसका क्या इफेक्ट हुआ था, इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट हुआ था, मुल्क के ट्रांसपोर्ट पे क्या इफेक्ट हुआ था, मुल्क के ट्रेड पे क्या इफेक्ट, उसका इन्फ्लेशन पे उसका क्या, अनएम्प्लॉयमेंट पे उसका इफेक्ट क्या आया है, ये सारा आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये करंट एक बर्निंग इशू। तो सबसे पहले क्या, अंडरस्टैंडिंग, डेटा अवेलेबिलिटी एंड बर्निंग इशू होना चाहिए, समझ आ रही है कि नहीं। ये जब मैं अपनी उस पर बता रहा हूँ तो वो बेस्ट टॉपिक होगा। वो टॉपिक क्या होगा जिस पे आप रिसर्च करें, अगर ये तीनों क्राइटेरिया वो फिल कर रहा है तो इसका मतलब वो बेस्ट रिसर्च है। वो क्या है, बेस्ट रिसर्च है। तो आपका रिसर्च ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। तो अब प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम पर्पस ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसका पर्पस क्या है, मकसद उसका। जी जी सर, तो खबरों का डेटा अवेलेबिलिटी सर। हाँ, डेटा अवेलेबिलिटी, डेटा मींस इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी। डेटा डेटा खुद ना कलेक्ट को मका जब दाव को मका लिटरेचर भी हो नन लिटरेचर को ना डेटा अवेलेबिलिटी को अगर के जमा कम दराजी जब ما بدي زو يقص تورطم اللي سبوز بعد لاس كساني زو بدينا على كويشنير صحيح. اين تبع الداتا انا خبرك او كان يو هغه ډیټ د کرونا خړ ډیر ډیټا څخه پراته ده یعنی چې دونه کډ مریضان دا ټول دونه خبره. Data availability means the information. Let's suppose the غواړم EIA وته وي environmental impact assessment چې د پاکستان کې نه نشته. ما په دې باندې یو ریسرچ پیپر کوله. ما مې زه د environmental impact څخه ما PhD ریسرچ انرژي باندې دی. نو ما ورشه سیمینر دام دې سره یو پیرل یو ټاپک چې دی باندې یو پیپر امپیکټ فیکټر کې پبلش کړ. EIA باندې ما دونه انفارمیشن دونه درې سره میاشتې مې خواري مالو کا دورا سره درې فرست سټوډنټانو مو یو کس سره PhD مو هم مسله ګولو چې پیپر تاسو ټول په دې مونږ واچو ما دا پبلش ایشین ډیولپمنٹ یو جرنل او هغه ایشین ډیولپمنٹ بینک یو جرنل او هغه کې ما پبلش کړل 3 امپیکټ فیکټر اکاس ما په جنګلو مو سره کانفرنس کې ملاقات شو نو ماته یې پیپر راوړل. نو ما به په اړه باغ دوړ شروع کړو. EIA environmental impact assessment مطلب دا دی چې لکه دا کم environment چې کوم دی کنه environment دا به تاسو کیلکولیټ کې چې لکه دا په دې خلکو په صحت باندې د افیکټ سوشل او د دې یو کاست یو بینیفیټ وي. لکه فار ایگزامپل ته انډستری لګي نو انډستری چې دا کوم یو لاندې خو فایده کوي چې مینوفیکچرینګ کیږي جاکټ جوړي بنینونه جوړي یا څه جوړي خلکو ته فایده رسي باین سیلینګ کیږي خلک پکې وکړي خو دا غیر چې کوم دا دغه خوريږي دا د خلکو په صحت باندې د څه افیکټ دی. environmental impact assessment نو هغه د سیس پاکستان کې ستاسو کیلکولیشن ولا ماشين نشته چې هغه مبیر کو چې دا وسیم راځي. نو ما ان د اند دا وکړو نو هغه خو ما خو بهر آرټیکل کتلې وي بهر ملکونو سره خو هغه شي نشته چې پاکستان سره نشته. نو ما چې دلته کې بیا شي نو کوم بیا ما چې اوس په انالیسس څنګه کوم انالیسس ته خبره لا ټول ارسه مې دا وکړ انالیسس کول بیا زه خپل اکانومټرکس والے نو ما چې کان ویریبلز او انډیکیټرز کې خو د انالیسس بیا کوم ختم. په اسلام آباد کې زما یو پروفیسور سره وو د کالیزم یونیورسيټي زما ټیچر هغه ته ځاغله لاړم هغه فرست PG ډاکټر اعتزاز هغه لاړم سټیټ بانک سره هغه سره ورلد بانک سره سره نو هغه ماته وی چې را د چیز کې سوري پاکستان کې د دې د نشته ته د سو انفارمیشن نشته نو بنگلاديش ته نشته بنگلاديش د نو ورکوټ دا هم د هغه نشته انډیا سره او پاکستان سره داسې نشته سداسي ماشين چې ته په دې باندې نمبر کې چې مطلب دا د پر ډے حساب سره پر سیکنډ نه سره داخلي او دې سونه په هیل باندې افیکټ راځي او دا کیلکولیټ کوي تاسو ویلیوز ولولګي سمپل خبردار چې ویلیوز لګي. ډیټا کلیکشن مینز ډیټا کلیکشن یا ډیټا انفارمیشن مطلب دا دی
चित्त उस फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज इंटेलिजेंस रिलेटेड से भी से मिलिट्री रिलेटेड से क्वेश्चन के होता लगा ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन नदर दी या द पुलिस रिलेटेड से दी डेटा अवेलेबिलिटी मींस दा चित्त पे फर्दर बिया एक्सेस कोली शी अगर सीज एंटर से देशी कनश से दी मतलब पहले दा मालूमात हम के हाउ टू कलेक्ट द डेटा लको दिस अस लगे हो मतलब लेटर आले दे कसम को टॉपिक रोल नो मादन दे कसम तो कुछ लीडरशिप स्टाइल और दागे पर ब्रांड चदे दा ब्रांड से दी जनरेशन माने सब इफेक्ट है नो तो तमा तपोस को जितना क्वेश्चन सिंह रखल पर तपोस के डेटा को बजे इंफॉर्मेशन को बड़े मेन चीज को तक करे दानो को थियोरेटिकल चीज नहीं दा को बतौली की चार मकाबी की चार मा हेल्प वाखले को मेन चीज को दारे जितना इंफॉर्मेशन रोड़े करना डेटा रोड़े चाबल चासर निश्ता नो तो बता लेट सपोज मा होते हैं अटल मैनेजरान को पीआई के नौकरान दर पीआई केस में कुछ पीआई का डिफॉल्ट तरवान बोले का ना तदी लीडरशिप स्टाइल का वजह की है इफेक्ट यो टॉपिक है रोड़ो नो मा यस यस अभी स्टूडेंट्स हैं हां तो ददे में मां से तब तपोसो को चला का तब सिंगल क्वेश्चन तो डेटा का सिंगल रोड़े और तो स्ट्रक्चर मेन चीज को दागा देगा ना तब दे सड़ी ने तपोस सिंगल की तब दे खपल दागा ना जमा डेटा कलेक्शन या डेटा अवेलेबिलिटी मींस दैट चिंता एक्सेस एक्सेस पॉलिसी ता अवशिस कलेक्ट पॉलिसी ते इंटरप्रेट पॉलिसी एनालाइज पॉलिसी मतलब है जमा दे टूल के अगर एंड पोरे चिला का मतलब डेटा हाउ टू कलेक्ट हाउ टू गेट इंफॉर्मेशन how to access the information, how to collect the information, how to interpret the information, how to analyze the information. That all खबर देगी ऐसी data availability का all खबर। तो देख कई योशिस किम तपा दे रहा है। Let's suppose data हम ताता मिलो शो। और तब ये मॉडल चिको फार्मूला की आगे रखा रहा फार्मूला तब आगे न पोए गया वे इंटरप्रेट को लिखने गया बस थी। जा इंटरप्रेट देम का एनालाइज देम का रोड रिलीज था। बे एक्सप्लेन को लेने शी। चिता खबरी मतलब सही। सही खबर है। कोई शो ना? वो दा टूल खबरें दे दे के राजी। Although so your topic from a study goes on the movement to the air index मालूमो हाँ that's not this study sir that ना के रो इंडेक्स द हर योशिस को भी ना करना हर योशिस को चार कड़ी दी चार नहीं करेगा ना रिसर्च दस योशिस दे जला फॉर एग्जांपल तो द जान पर के सिशिस प्लेट को लेने योशिस बत रेफरेंस वर्क करेगा लेट्स सपोज ता कार कड़े दे मजो बस्ता रेफरेंस वर्क को करना चाहिए का स्पीकर फॉर द जमा स्टडी तो वे खलक पूरी कजो चना अमल जा पहले देखो जे से को ब्या आगो जिते पके कम तरफ ना नो रेफरेंस पर देख जरूरी है चला का मतलब नूर खल को पे पास पे खल को कार कड़ी ठीक था हां नो सब क्वेश्चन वीडियो कॉल पे जी क्वेश्चन है जी सब क्वेश्चन हुआ है अच्छा तो द पर्पस ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स अब उसका पर्पस क्या है इंट्रोड्यूस द रीडर टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक बीइंग स्टडीड सिंपल है कि आप ये सिर्फ इंट्रोड्यूस करें सिर्फ ये इंट्रोडक्शन टॉपिक का कि जो चीज आप स्टडी कर रहे हैं ना जो चीज आप स्टडी कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है यही बात हम बात कर रहे हैं ना कि लेट्स सपोज इफ आई वांट टू सेलेक्ट अ टॉपिक सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक इन माय ओपिनियन सो आई विल जस्टिफाई दैट समझ आ रही नहीं मैं उसको एक्सप्लेन तो करूंगा कि यार ये टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया ये क्यों मैंने किया जिस तरह आपने बता दिया कि मैं प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स के दरमियान में ये स्टडी करना चाहता हूं कि इसकी परफॉर्मेंस क्यों खराब है प्राइवेट की अच्छी है और पब्लिक की खराब है और लोग क्यों पब्लिक को प्राइवेट कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेट में लोग खुश है उसका सिस्टम सही चल रहा है और प्राइवेट में पब्लिक में उसके पास रिसोर्सेज भी हैं उससे क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी हैं अच्छे अच्छे लीडर्स मतलब मैनेजर भी हैं स्टाफ भी ज्यादा है तो इसलिए और वर्क भी उसके ज्यादा है मतलब अगर एक चीज अरेंज करते तो प्राइवेट के तो उसमें कैपेसिटी एसेट्स तो कम है लेकिन फिर भी तो ये आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके जहन में ये इंपॉर्टेंस है ना इंपॉर्टेंस तो ये इंपॉर्टेंस सबसे पहले तो ये द रीडर इज ओरिएंटेड टू द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी मैंने आपको अभी जो बात की ना कि तीन चीजें इंपॉर्टेंट है रिसर्च गेट और फिर मैंने आपको बताया सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी मींस इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी क्या होता है इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी तो आप एक पैराग्राफ में लिखेंगे कि जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है उसका ये इंपॉर्टेंस है दुनिया की इकोनॉमी ऐसी अच्छी होती है इससे इस मुल्क की जो जीडीपी है उसमें इंप्रूवमेंट आता है लेट सपोज उसकी बेरोजगारी खत्म होती है या उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है या हॉस्पिटल से रिलेटेड आप लेते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड लेते हैं जो भी फील्ड है इंजीनियरिंग से रिलेटेड लेते हैं तो आपका ओवरऑल उस फील्ड पे इसका क्या इंपॉर्टेंस है सिग्निफिकेंस है हां सर प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब दा है कि कम टॉपिक समाज है दैट इज
problem statement thing to do which is da katal wala which is private the problem statement da research da show da the research topic show problem statement now udi the full explain problem or statement dual words problem we issue da kana sa problem ya issue di da issue or da problem چې کوم دی نو دې باره کې یو statement لیکم دا غستا یو ټاپک دی دا اورال د ټاپک نه گیم شروع کیږي دا تاسو چې ما لاست ویک کې ورکړم کنه چې یو ټاپک ځان سره ذهن کې تاسو کوېسچن دی सबसे पहले रिसर्च गए will be research गए sorry research question research question دا استازن کې یو question راغی ته مجبور شوې چې observation باندې observe کې چې را دا research question د ما ځین تر راغی بیا دا غیر ټایټل جوړ کو او ټایټل دی ولې جوړ کو ټاپک دی ولې جوړ کو چې ستا ته پته لګي چې یو دا ټاپک په دې ځکه کار کوم چې دلته یو ایشو ده دلته یو پرابلم دی نو problem statement means a statement about an area about a person or a groups of peoples to solve, to improve, to facilitate, to remove the difficulties, to eliminate the difficulties. Like for example, that's a very kind of health area. The topic go on. They which private or that is the word which comparative studies of word ma. The kada topic go after also padi research ko ma. The full study the comparative studies go on. The comparative study between public and private hospital performance. They want in Peshawar. No, they padi bani performance bani study ki jara private or public ki sab the performance ki sab. The comparison ko. Jadi performance study. उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से दे द प्रॉब्लम फील कई कर दे बस स्टेटमेंट लिखी करना चाहिए वो ले ज़्यादा कौन सा सरकारी अस्पताल के कारकुन एज अ एमएस या एज अ डिप्टी डायरेक्टर एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर या डायरेक्टर जॉब को और माता दा प्रॉब्लम माता दा फील शुआ दा प्रॉब्लम माता रहा है जरा प्राइवेट खुदी और सरकारी चीज़ खराबी की वस्तु रहा तो बताने बारे के स्टेटमेंट लिखी their statement is known as problem statement this is your research main theme. The main theme of the research is research problem. Now, the research problem basically a research question or research problem is basically a research question if we want to find the solution of that question. Through research process, the research question solution word investigate kawai. Now, they the research problem. Basically, secretary of the study and the research question or hypothesis to follow. उस hypothesis का बरना है। तब अखिर या coming week के लेवल को दाल broad तक दे। Hypothesis basically when you observed, then you can assume something. First the observation. कोई चीज आप observe करते हैं ना? Let's suppose मैं आपको देख रहा हूँ, आपका नाम क्या है? नैयर को मैं देख रहा हूँ, मैं कहता हूँ नैयर बड़ा एक्सपर्ट बनता है। ये मैंने ऑब्जर्व कर दिया और मैंने ये assume भी कर दिया कि नैयर एक्सपर्ट बनना है। So this is my observation, this is my assumptions. अब ये assumption ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। हो सकता है मैं गलत हूँ। तो इसको फिर जब टेस्ट करते हैं कि ये बात गलत है कि सही है, तो इसको हाइपोथेसिस कहते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? इसको और उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए कि नैयर सही बंदा है कि नैयर सही बंदा है या मोटिवेटेड बंदा है कि मोटिवेटेड नहीं है, तो इसको प्रूव करने के लिए मैं डाटा कलेक्ट करूंगा, इंफॉर्मेशन करूंगा, ये इसका दोस्त है या इसके जहाँ पे जॉब करता है उससे डाटा कलेक्ट करूंगा, तो उसके बेस पे मैं कहूँगा। वालेकुम सलाम। हर क्लास की नई का सामना जी, ये भी नया है ना, ये तो चौथा क्लास है। तो इसके बारे में जब डेटा मैं कलेक्ट करता हूँ और उस डेटा के बेस पे फिर मैं मेरा जो स्टेटमेंट मैंने लिखा था, सो बेसिकली वही स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात आ रही। ऑब्जर्वेशन, असम्पशन, फिर हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस योर स्टेटमेंट कि वो स्टेटमेंट ठीक था या गलत था। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, फिर क्या कहते हैं? सेकंड जो इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, places the problem into a particular context that define the parameters of what is to be investigated. जो आपको स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया कि लेट्स सपोज यहाँ पे हमने टॉपिक्स लिखे थे ना, इसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे।
ताने भी सिंग तो कुसनो पड़ करा कि लीडरशिप स्टाइल सोना किस्म नवी सिंग में कैलकुलेट की तेना में तपोसु को अगना में तपोसु को ई प्रोक्यूरमेंट और सप्लाई चेन परफॉर्मेंस सतवई दागी फैक्टर्स दी दागी इंडिकेटर्स दी। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं कि places the problem into a particular context। प्रॉब्लम को क्या करेंगे, पार्टिकुलर कंटेक्स्ट में हम उसको प्लेस करेंगे। दे डिफाइन द पैरामीटर्स कि किस चीज को हम पैरामीटर्स, तो पैरामीटर्स पे एक अलग लेक्चर बनता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, वन इज मैथमेटिकल पैरामीटर्स, अनदर इज स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स। इन रिसर्च वी फाइंड द स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स, नॉट मैथमेटिकल पैरामीटर। इन मैथमेटिक्स पैरामीटर्स इज अ वैल्यू हुए लगता हुए कब हाँ मैथमेटिक्स की पैरामीटर देते हैं पुख्तों के बेबेगा कुछ समझ आए सब आप नहीं। अच्छा मैथमेटिक्स में पैरामीटर क्या होता है, मैथमेटिक्स में पैरामीटर ये है कि एक चीज है कांस्टेंट, एक है कांस्टेंट एक है वेरिएबल। लेट्स सपोज ये मैं लिखता हूं 2x, तो 2x x इज अ वेरिएबल एंड 2 इज कांस्टेंट, समझ आ रहा है कि नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि 2x प्लस 15 y इज इक्वल टू, तो ये y की वैल्यू, अब जब तक मैं इस x की वैल्यू पुट ना करूं तो y की वैल्यू कहां से आएगी, नहीं आ सकती। तो मैथमेटिकल पैरामीटर उसको कहते हैं कि एक चीज है वेरिएबल, लेकिन उस वेरिएबल की जगह मैं कुछ कांस्टेंट पुट करूं। लेट्स सपोज यहां पर x की जगह मैं 10 पुट करूं, तो x तो है वेरिएबल लेकिन उसकी जगह मैंने 10 पुट कर दिया, 10 है कांस्टेंट। तो इंस्टेड ऑफ वेरिएबल वी पुट सम कांस्टेंट टू फाइंड द सॉल्यूशन or to find the value, it is known as mathematical parameter. It is known as mathematical parameter. Statistical parameter जो research parameters है वो क्या है? Research parameters means कि हम variables, basically research के अंदर हम variables find out करते हैं। क्या करते हैं? Variables find out करते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल आपको बता दिया था कि the effect of oil prices on quantity demanded of consumer। मैं कहता हूँ कि ना आजकल पेट्रोल की प्राइसेस सीएनजी बंद है तो पेट्रोल पे लोग चल रहे हैं ना, तो उसकी प्राइसेस पे क्वांटिटी डिमांड ऑफ कंज्यूमर का क्या इफेक्ट है, उसका क्या इफेक्ट है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ऑयल ऑफ प्राइसेस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कंज्यूमर, देयर आर टू वेरिएबल, देयर आर टू पैरामीटर्स। इसको हम फाइंड आउट करें। स्टैटिस्टिकल में पैरामीटर ये है कि जो चीज अननोन हो जिसको हम फाइंड आउट करेंगे उसको पैरामीटर्स कहते हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि place the problem into a particular context that define the parameters of what is to be investigated, कि किस चीज को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, what are the parameters। तो मैंने ये दो टॉपिक्स आपको लेट आए, ये दो टॉपिक्स मैंने लिखे थे जो इन लोगों ने लाए थे आज। तो इसमें ई प्रोक्यूरमेंट और सप्लाई चेन परफॉर्मेंस, ये दो पैरामीटर्स हैं, एक है सप्लाई चेन परफॉर्मेंस और एक है ई प्रोक्यूरमेंट। इसका इफेक्ट मालूम कर रहे हैं तो आपने क्या फाइंड आउट करनी है कि ई प्रोक्यूरमेंट क्या चीज है, उसकी क्या इंडिकेटर्स है, और दूसरा है सप्लाई चेन परफॉर्मेंस क्या चीज है, ये दूसरा पैरामीटर्स है। तो आपने ये इन्वेस्टिगेट करना है, क्लियर है कि नहीं। तो इसका मतलब ये कि द पर्पस ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, के प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिसर्च के अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या चीज, उसका मकसद क्या होता है, उसका मकसद ये होता है कि हम पैरामीटर्स को फाइंड आउट करें, इन्वेस्टिगेट करना। समझ आ गई कि नहीं। अच्छा, नंबर 3 जो है provides the framework for reporting the results and indicates what is probably necessary to conduct the study and explain how the findings will present this information। सिंपल बात कि हम क्या करेंगे, फ्रेमवर्क को क्या करेंगे, फ्रेमवर्क, उसका एक फ्रेमवर्क बनाएंगे। क्लियर है कि नहीं। फ्रेमवर्क किस तरह बनाएंगे, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वही लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स। तो लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स वेरिएबल्स भी हैं, ये पैरामीटर्स भी हैं। तो इसका आप एक फ्रेमवर्क बनाएंगे कि आपका एक अम्ब्रेला शेप आएगा कि आपका जो रिसर्च है इस अम्ब्रेला शेप के अंदर होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अम्ब्रेला शेप का मतलब क्या है, लेट्स सपोज मैनेजमेंट साइंस में मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर है, तो मार्केटिंग के अम्ब्रेला शेप में आपकी वेरिएबल सारे, अगर आप मार्केटिंग की रिसर्च कर रहे हैं, लेट्स सपोज आपने जो लीडरशिप स्टाइल और ब्रांड जनरेशन की बात की है, तो ये आपका एचआर है, आपका भी एचआर है, इसका भी एचआर है, और आपका जो है ये भी एचआर है। आप परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं ना, हॉस्पिटल की परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, तो ये तो एचआर परफॉर्मेंस है ना।
ह्यूमन रिसोर्स में इसका है ना, डिपेंड करते हैं ह्यूमन रिसोर्स में कि प्राइवेट में अच्छा काम कर रहे हैं और उसमें नहीं, पब्लिक में नहीं कर रहे। तो ये आप क्या है, HR से रिलेटेड है। तो आपका अम्ब्रेला शेप क्या होगा, फ्रेमवर्क आपका क्या होगा, फ्रेमवर्क, वो फ्रेमवर्क आपका एक अम्ब्रेला जिससे आपकी जो सारे वेरिएबल्स हैं, जो पैरामीटर्स है उसके अंदर होंगे, उससे बाहर आप नहीं निकलेंगे। तो ये कहते हैं कि प्रोवाइड द फ्रेमवर्क, क्या करें, प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स एंड इंडिकेटर्स। ये तो बात की बातें हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मैंने आपको बता दिया ना स्टार्ट में, हमने बता दिया था, जरा ये लोग नए आए हैं तो इसको भी जरा मैं दिखाऊं। ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट की डिफिनीशन, रिसर्च प्रॉब्लम की डिफिनीशन ये है। इसमें क्या करते हैं, जागो रहे जब तक ये छक्कम का सामने नहीं डाल ली। ये एक डिफिनीशन मैंने बताया था, सिंपल। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट या प्रॉब्लम रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम इज अ स्टेटमेंट अबाउट एन एरिया of concern, a condition to be improved, a difficulty to be eliminated, or a troubling question that exists in scholarly literature, in theory, or in practice that points to be needed to meaningful understanding and deliberate investigation. कि हम क्या करें, जो भी डिफिकल्टीज, जो भी प्रॉब्लम्स किसी जगह पे, किसी एरिया में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंट्री में आता हो और उसको हम इन्वेस्टिगेट करें, उसके लिए डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स हम निकाले, डिफरेंट सोल्यूशन निकाले, उसको हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहते हैं। समझ आ गया कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहते हैं। क्लियर है? तो नीचे जो उसने बताया है पर्पस ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर रिपोर्टिंग, क्योंकि ये सारा जो रिसर्च का एंड है वो डिपेंड करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि आया आपने रिसर्च कर लिया, एंड द एंड पहुंच गए, तो आपका जो प्रॉब्लम था आया कितना साल हो गया, वो कितना सोल्यूशन उसकी हो गई, आपकी रिजल्ट्स ने क्या रिपोर्ट किया, ये लिख रहे हैं ना, द फ्रेमवर्क फॉर रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स एंड इंडिकेट्स what is probably necessary to be conducted the study and explain how the finding will present this information. क्लियर है कि नहीं, कि वो आपके पास आपकी सोल्यूशन कितनी % सॉल्व होगी, आपकी प्रॉब्लम कितनी % सॉल्व होगी, आपकी सोल्यूशन कितनी % कामयाब हो गई, समझ आ रहे कि नहीं, और आपने इंप्लीमेंट भी करती, तो उसको हम क्या, इसको हम क्या कहते हैं, पर्पस ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। नीचे जो है हाउ टू आइडेंटिफाई, ये तो सिंपल है, खैर हाउ टू आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम, कि रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे। सो टाइम दे देखिए मेरा बस को सारा टॉपिक है सब, या उसको कंट्रोल करने के लिए ना जोर बता रही हो रही यो how to identify a research problem. After choosing a specific topic for your academic, let's suppose आज आपने अपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, academic paper, you need to state it is a clear research problem that identify all the issues that you will address. मैंने जो बात की ना स्टार्ट में कि आपका रिसर्च प्रॉब्लम, आपका रिसर्च क्वेश्चन, आपका टॉपिक, आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो ये भी ये लिख रहे हैं ना कि the specific topic to your academic paper you need to state it is a clear research problem that indicates, समझ आ रही है, identify all the issues you are addressing. It is not always simple for students to formulate it. इतना आसान नहीं बात होगा, मैंने आपको बता दिया कि ये नहीं है कि बस आप आज टॉपिक ले आए हैं तो बस ये सेलेक्ट हो गए, बात खत्म नहीं, ये तो आप किसी और की कॉपी लेकर आए हैं, ये तो किसी और की रिसर्च टॉपिक्स है ना, इसमें हम फिर अपना वो करेंगे ना, इस तरह होते नहीं, कंबल होते हैं ना, हर एक बंदा अपना पाँव उसमें, तो ये रिसर्च की मिसाल एक कंबल की है, हर एक बंदा अपनी पाँव के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, तो इसमें आप अपनी पाँव वेरिएबल्स उसके अंदर ये है ना, ये स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया, वेरिएबल को चेंज करेंगे, लेकिन किस तरह चेंज करेंगे, जो बंदे ने जो रिसर्च किया है हो सकता है उसने अपने रिकमेंडेशन में लिखा, आप जाके उसकी रिकमेंडेशन में देखेंगे कि मैंने तो ये काम किया है लेकिन ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये आपके लिए उसने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, तो आप कोशिश करेंगे कि उसकी वो रिकमेंडेशन उठाए कि उसने छोड़ दिया था, मैंने उसको सॉल्व कर दिया। फिर जब आप रिसर्च करेंगे तो आप अपनी रिकमेंडेशन लिखेंगे, तो मैंने तो इस हद तक काम कर लिया, ये होना चाहिए। रिकमेंडेशन में तो हम ये करते हैं ना कि
द गवर्नमेंट शुड ये गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो फिर आपने वो रिकमेंडेशन बनानी। एक तो ये। दूसरी बात ये है कि रिसर्च में सारे जो है गेम्स ऑफ वर्ड्स हैं, तो आप वर्ड्स को इधर उधर करेंगे, उसमें हेराफेरी करेंगे ना, समझ आ रहे कि एक तो ये। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हो सकता है उसने एक एरिया में किया हो, आप दूसरी एरिया में करें, समझ आ रहे। फिर उसने एक एंगल से पकड़ा हो, आपने HR के लेट सपोज आप जो है टेक्निकल स्टाफ को उठा देते हैं, दूसरा बंदा जो है आप उससे रिलेटेड, और दूसरा बंदा मैनेजरियल स्टाफ को उठा, समझ आ रहे कि नहीं। तो इसमें है, मैं आपको टाइम टू टाइम हर एक चीज़ बताऊंगा, लेकिन जब आप अपना वो करेंगे तो मैंने आपको बता दिया कि मैं हर एक स्टूडेंट को, फिर खैर ये तो मेरा नहीं, ये तो आपका सुपरवाइजर का फिर काम है कि टॉपिक सेलेक्ट करना, रिसर्च करना, वो तो उसका काम है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको 5-5, 10-10 मिनट अलग अलग बंदे को दूंगा कि आपका अपना टॉपिक है, इसका अपना टॉपिक है, इसका अपना टॉपिक है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या क्या करना चाहिए इसमें, फिर ये आप जाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए एक रोड मैप क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। जब आप रिसर्च में थोड़ा पढ़ेंगे तो सिर्फ पेपर पास नहीं करेंगे, आपका साथ में आपका रिसर्च भी तकरीबन अगर 100% नहीं है, 50% नहीं तो 30% तो होगा इंशाल्लाह, ठीक है। अदरवाइज बाज़ लोग जो है, मैंने आपको बताया 3-3 साल इसमें पढ़े होते हैं, रिसर्च नहीं करेंगे, पेपर तो पास करो, क्लास ले लो और पेपर दे दो और पेपर पास करो। रिसर्च मुश्किल काम है। डॉक्टर FCPS पार्ट 2 की आपको रिसर्च देगा ना, डॉक्टर सारे डॉक्टर जो है पार्ट 2 पास नहीं कर सकते स्पेशलाइजेशन के, पार्ट 1 तो सब गए, पार्ट 2 की हुई है, जिस तरह पेपर आप देते हैं बस ये कोर्स वर्क होता है, और पार्ट 2 सारा रिसर्च है। अच्छा, तो ये है। फिर कहते हैं कि it is not always simple for students to formulate it. In some fields, they may end up spending a lot of time thinking, exploring and studying before getting a clear idea of what research question to answer. वही बात आ गई कि बहुत से लोग इस पे टाइम ज़ाया कर लेते हैं कि how to select a topic, how we can study research article. उदा बुरा स्टार्ट के हो, आपने तो स्टार्ट में ये कहा था कि सर तो बड़े वो एडवांस पढ़ा रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आ रहा है, मुझे किसी ने बताया था ना फीडबैक पे फर्स्ट क्लास के बाद। तो मैंने कहा है कि रिसर्च में दड़ा ये ABC नहीं होती ना, इसका तो 1 2 3 नहीं, रिसर्च में दड़ा नहीं, मैं रिसर्च ही आपको पढ़ाऊंगा और कोई चीज़ तो नहीं पढ़ा सकता कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो गया या लेट सपोज HR हो गया, मार्केटिंग, तो वो तो ABC से हम स्टार्ट करेंगे, कहानियां सुना के। इसमें कहानियां नहीं चलेंगे, ये इसमें प्रैक्टिकल काम चलेंगे, समझ आ रहे कि नहीं, इसमें प्रैक्टिकल काम। तो इसको तो इससे सिंपल तो मैं तो हम साइंस में पढ़ाता हूँ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, इससे सिंपल तो मैं नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको अपने साथ चलाओ और आपसे काम ढूंढे, ये फिर एक टैक्टिक्स है, एक तरीका है टीचिंग का कि स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके चलना। तो फिर मैं वो स्ट्रेटजी पे अप्लाई करूंगा जो अभी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें ये है कि इस पे टाइम फिर लगता है, क्वेश्चन इसमें मतलब टाइम। तो ये है कि आपके लिए आसान होगा, आप जब 1 क्लास 2 क्लास लेंगे, यूज टू हो जाएंगे, आपका माइंड क्लियर होगा। मैं आपको स्टेप वाइज समझाऊंगा, स्टेप वाइज आप चल रहे हैं। स्टार्ट में मैंने आपको सिर्फ टॉपिक के बारे में, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो आप क्या करेंगे, अब जब इस वीक आप जाएंगे तो आप कम से कम 5-5 6-6 लाइन जिन लोगों ने टॉपिक सेलेक्ट कर दिए ना, तो आप अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो जैसा भी हो, आपकी इंग्लिश जैसी भी हो, टेढ़ी मेढ़ी इंग्लिश हो, उर्दू क्यों लिखे, उर्दू में लिख लें, लेकिन आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ये जो टॉपिक में ले रहे हैं इससे रिलेटेड ये है। तो फिर उसमें मैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट या थोड़ा उसमें एडिशन में करूँगा कि इसको इस तरह हो जाए तो अच्छी बात है। रिसर्च में ये कोई नहीं कह सकता कि मैं सही कह रहा हूँ आप गलत कह रहे, नहीं। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि अगर इसको मेरे आइडिया के मुताबिक अगर इसको इस तरह इस अंदाज में करें तो ये अच्छा हो सकता है। कभी भी आप ये, मैं आपको भी ये बता रहा हूँ, कभी भी आपने किसी रिसर्च को टोटली क्रिटिसाइज नहीं करें कि आपकी रिसर्च गलत है, नहीं, कभी भी आप किसी को गलत नहीं कह सकते। हर एक बंदे की अपनी माइंड सेटअप है, उसने एक सेटअप अपनी जहन में की होगी और उसने रिसर्च स्टार्ट की होगी, ठीक है। आप उसको सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट इस तरह हो सकती है। अदरवाइज ये आजकल तो यहाँ पर ये है ना, ये गलत कोई बड़ा गलत है, ये तो सारा गलत है, गलत नहीं होता, उसमें इम्प्रूवमेंट आना होता है, उसकी डायरेक्शन हो सकता है ठीक ना हो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, रिसर्च क्वेश्चन को आंसर किस तरह करना है, आइडेंटिफाई किस तरह करना है, ये सिंपल है, सिंपल उसमें मैंने लिखे हैं सिंपल इंग्लिश में, उसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, व्हाट इज अ स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, वही बात, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम।
तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्टिंग ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज आर नीड्स। क्या करोगे? इंपॉर्टेंट इश्यूज आपके, मैंने आपको बता दिया बर्निंग इश्यूज क्या चल रहे हैं। लेट सपोज आटे का बहरान है, मुल्क में महंगाई है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, समझ आए, कोरोना का भी एक वो चल रहा है। ये तो जर्नल में कहानियां बता रहा हूँ, जर्नल प्रॉब्लम्स है। आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी जो जहां पे आप जॉब करें वहां पे क्या प्रॉब्लम्स है, जहां पे आप रह रहे हैं वहां पे क्या प्रॉब्लम्स है, तो आप उसको लिंक करेंगे अपनी स्टडी के साथ, अपनी स्पेशलाइजेशन के साथ। मैंने आपको बता दिया ना कि आपकी जो स्पेशलाइजेशन है HR, मार्केटिंग और फाइनेंस, उससे आप लिंक करेंगे कि आपके एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसको लेंगे। तो ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग इंपॉर्टेंट इश्यूज आर नीड्स। क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट करेंगे इंपॉर्टेंट इश्यूज को, बेसिक ऑन सेकंड जो है ऑन फैक्चुअल एविडेंस। ये नहीं है फैक्ट्स आप बताएंगे, ये नहीं है कि जो फैक्ट चीजें हैं वो ले, नहीं, जो एविडेंस के थ्रू जो चीजें आप स्टडी करेंगे ना, उसका कोई एविडेंस होगा, कोई सबूत होगा, कोई उसकी क्या होगी, फैक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे उसके। समझा रहे कि नहीं? तो अच्छी बात ये है, रिसर्च दो किस्म, एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, स्टार्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च सारा जो है, क्वालिटेटिव रिसर्च को लोग इतनी अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, क्योंकि वो सिर्फ स्टोरी या कहानी, जिस तरह इंग्लिश लिटरेचर वाले करते हैं, उर्दू वाले करते हैं, वो एक पोइट्री किसी का लेते हैं, किसी बंदे पे वो एक कहानी लिख लेते हैं, वो उसका रिसर्च है। असल रिसर्च होती है फैक्ट्स एंड फिगर्स पे, कि आपके पास न्यूमेरिकल डेटा हो, और डेटा हो क्योंकि वो ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, कि उसमें गलती नहीं हो सकती। समझ आ रहे हैं नहीं? तो ये आपके पास क्या हो कि बेसिक ऑन फैक्चुअल एविडेंस हो, बीइंग मैनेजेबल एंड रेलेवेंट। ये ना हो कि आप पढ़ रहे HR, पढ़ रहे मैनेजमेंट साइंस, पढ़ रहे फाइनेंस, पढ़ रहे मार्केटिंग, और आप जाके किसी और चीज़ पे स्टडी कर रहे हैं। तो रेलेवेंट होना चाहिए, आपकी स्टडी से रेलेवेंट होना, आपकी स्पेशलाइजेशन से आपकी रिसर्च रेलेवेंट होनी चाहिए। ठीक है? फिर क्या है नंबर 4, सजेस्टिंग अ टेस्टेबल एंड मीनिंगफुल हाइपोथेसिस। वो तो खैर बात की बात है कि आपके पास क्या हो, टेस्टेबल हो, कि जो हाइपोथेसिस आप लिखते हैं, जो स्टेटमेंट आप लिखते हैं, आया उसको आप टेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सिर्फ लिख लिया आपने, नहीं लिखना ये सिर्फ नहीं है, उसको आप टेस्ट भी करेंगे। समझ आ रहे कि नहीं? सिर्फ लिखना नहीं कि मैंने लिख लिया हो बस बात। जिस तरह मैंने अपनी एग्जाम्पल आपको बता दी कि ये पे तो मैं रिसर्च करना चाहता था, मेरी तो बड़ी सोच है, लेकिन नहीं कर सकता। समझ आ रहे कि नहीं? तो आया उसको आप टेस्ट करते हैं, टेस्ट कर भी सकते हैं कि नहीं, आपकी उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपके पास मौजूद है कि नहीं। हाँ बस हाँ, फिर कमिंग उसमें कर लेंगे, कमिंग क्लासेस में कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है? कमिंग उसमें कर लेंगे। हाँ, एनी क्वेश्चन? आज हम नहीं करें, बल क्लास में करें। हाँ, एनी क्वेश्चन? जो भी क्वेश्चन हो शाबाश। कोई भी क्वेश्चन हो क्वेश्चन मिस्टर सर हमारे लगाए कहीं नहीं रहते क्लियर के हो मस्तियों क्लासों के बहुत नरम सुन की शायद किताब डिस्कस करें सर हमारे से एक के जमा रिसर्च यो आर्टिकल ले और मतलब जमाना दी प्रपोजल मतलब आप वाली पहुंचे और फिर जरा कोई हम दी प्रपोजल जरा देना संग हम कहीं नहीं जा सकते तेरा प्रपोजल तो फिर तो संग मतलब ये आर्टिकल ने मतलब और प्रपोजल निकला और बागे में मतलब माना को पर आर्टिकल मामूली को तो ये आर्टिकल ने सब फिर तो आपका प्रपोजल पसंद है या प्रपोजल पसंद है आर्टिकल ना हो प्रपोजल जोड़ल आसान दी खुदा प्रपोजल ना आर्टिकल जोड़ल ग्रांड दी
उसको कहना आर्टिकल मीन्स कंप्लीट रिसर्च हुई, आर्टिकल मीन्स रिसर्च पेपर्स या रिसर्च आर्टिकल मीन्स कंप्लीट योर रिसर्च हुई चिता आता थीसिस करी होता दागे ना पे ऑब्जेक्टिव बांधी यो पेपर पब्लिश की लेट सपोज ता रिसर्च को औस्ता रिसर्च के दरे ऑब्जेक्टिव हुई स्टार रिसर्च दरे ऑब्जेक्टिव हुई उसे रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च पेपर दाना दा चिता पे दरे होना ऑब्जेक्टिव पेपर पब्लिश की आगे ना सिर्फ यो वाखले उता यो ऑब्जेक्टिव वागशनो ओ पागे बांधता यो 10-15 पेजेस पागे वाली रिसर्च पेपर आर्टिकल पब्लिश पागे पेपर ऑब्जेक्टिव बेले पेपर पब्लिश कर पड़े बेले बेले करना बस ता दरे ऑब्जेक्टिव नो दरे पेपर स्टार तखन की और डिपेंड कई चे लका ऑब्जेक्टिव सोना पड़े लका ऑथेंटिक थी और ऑब्जेक्टिव ची सोना लका एक्सटेंसिव थी और कोट ऑब्जेक्टिव और कोट दागे एनालिसिस या और कोट दागे की नागे मुंगा पागे पेपर पब्लिश कोली अमूमन मुंगा ज्यादातर रिसर्च पेपर की यो मॉडल अप्लाई कोई यो फार्मूला अप्लाई को यो पेपर ते सिर्फ पब्लिश की और कई सड़ी पखल रिसर्च की द्रेसलोर ऑब्जेक्टिव कुडे और द्रेसलोर ऑब्जेक्टिव ची दे द्रेसलोर ऑब्जेक्टिव पर डिफरेंट फार्मूला बांधे या वो डिफरेंट नाहे द्रेसलोर आर्टिकल पे पब्लिश की प्रपोजल राशि भी चे दीता मैं स्टार्ट की वीडियो प्रपोजल बेसिकली रिसर्च प्रपोजल के और रिसर्च थीसिस के और प्रपोजल के फर्क हुई प्रपोजल या साइनॉप्सिस दैट नॉट योशिस दे रिसर्च प्रपोजल और साइनॉप्सिस यूजुअली उनबे चिकन रे चैप्टर भी करन इंट्रोडक्शन भी हो गया लिटरेचर रिव्यू भी हो गया ये इसको तो समझ नहीं आएगी यार सॉरी तो लिटरेचर रिव्यू उनके लिटरेचर जो रिसर्च पेपर है या रिसर्च है थीसिस है ये एक चीज है और जो साइनॉप्सिस है या रिसर्च प्रपोजल है ये दूसरी चीज है तो थीसिस के फर्स्ट 3 चैप्टर थीसिस 5 चैप्टर के होते हैं इंट्रोडक्शन लिटरेचर रिव्यू मेथोडोलॉजी रिजल्ट एंड डिस्कशन एंड कंक्लूजन रिकमेंडेशन 5 चैप्टर होते हैं इसमें रेफरेंसेस होते हैं लेकिन उस चैप्टर में इंक्लूड नहीं होता तो 5 चैप्टर है तो साइनॉप्सिस या प्रपोजल जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं मेथोडोलॉजी उसके लिए वो करते हैं सजेस्ट करते हैं कि ये मेथोडोलॉजी होगी और प्लस उसके लिए लिटरेचर रिव्यू होगा ना नहीं इंट्रोडक्शन लिटरेचर रिव्यू और मेथोडोलॉजी ये 3 चैप्टर को अगर हम लिखते हैं तो ये आपके रिसर्च प्रपोजल या साइनॉप्सिस हो गए अब आपने न रिजल्ट्स फार्मूला अप्लाई नहीं किया है रिजल्ट्स आपके पास नहीं है डिस्कशन आपने नहीं की है कंक्लूजन रिकमेंडेशन आपने नहीं लिखे हैं अगर ये 2 चैप्टर आप छोड़ दें और 3 चैप्टर करें तो ये साइनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल होता है बाकी इन दोनों को ऐड करें तो ये कंप्लीट थीसिस हो गई फिर एक थीसिस होता है एक डिसर्टेशन होता है थीसिस एमफिल लेवल पे होता है एमएस लेवल पे और डिसर्टेशन पीएचडी लेवल पे होता है पीएचडी की रिसर्च को डिसर्टेशन कहते हैं और एमफिल और एमएस की रिसर्च को थीसिस कहते हैं स्पेश हुई कना नोट्स हो गए ना सही सुन सर दादाची वस्ते केस जो स्टार्ट हो मग आता स्विच मतलब जन टॉपिक सेलेक्ट के हां अब जो इंट्रोडक्शन दी का मानो गई मेरा क्यों लग गया टीच मतलब जो संग जदेवा कौन से स्टिक्स लगी बराबर दीदा उस अभी तो मैंने स्टार्ट किए ना लास्ट क्लास में ये मेरा 4 क्लास बेसिकली आज चौथा क्लास है लेकिन एक क्लास में स्टूडेंट्स नहीं आते 3 क्लासेस हो गए तो फर्स्ट क्लास में तो मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाई सिर्फ डिफिनेशन की रिसर्च क्या चीज़ है रिसर्च सेकंड में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू सेलेक्ट अ टॉपिक इस पर मेरी बात की इन लोगों को मैंने दिए जो बहुत से स्टूडेंट्स एब्सेंट है आज इस डर से कि उसको मैंने थोड़ा छोटा सा असाइनमेंट दिया था कि आप अपने अपने कोई एक लाइन लिख के कोई भी हो घर में जाके आप देख ले रास्ते में गाड़ी में बैठे हो कोई नेट में कोई चीज़ देख ले ज़रूरी नहीं है कि आप वो लेंगे तो ये गलत या आपकी गलत होगी या मैं आपको सजा दूंगा नहीं बस आप अपनी यार एक बंदे की अपनी जहन तो उसको मैंने एक असाइनमेंट दी थी तो हाउ टू सेलेक्ट द टॉपिक मैंने पहले वो लेक्चर उस पर दे दिया और फिर उसको दे दिया कि आपके जहन में जो भी क्वेश्चन आता है उस पर एक टॉपिक ले आए तो रिसर्च क्वेश्चन आपके जहन में क्या क्वेश्चन है अब आपके इंटरेस्ट कहाँ पे हैं आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है आप सोचेंगे ये ना कि मैं मार्केटिंग लूँगा कि HR लूँगा कि तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपकी स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग है और आप HR में रिसर्च कर रहे हैं तो ये फ्लॉलेस डिग्री उसको कहते हैं इसको फ्लॉलेस डिग्री कहते हैं फ्लॉलेस डिग्री मतलब ये है कि आप कर रहे हैं एक चीज़ और रिसर्च दूसरी चीज़ में कर रहे हैं समझ आ रहे कि नहीं तो ये गलत है रेलिवेंट होना चाहिए आपकी रिसर्च तो पहले तो आपकी इंटरेस्ट आप शो करें कि आपने मार्केटिंग में करना है कि HR में करना है कि फाइनेंस में करना है ठीक है फिर आपके जहन में क्वेश्चन क्या आता है कि इश्यूज़ क्या है मार्केटिंग के हज़ारों इश्यूज़ हैं फाइनेंस के हज़ारों इश्यूज़ हैं आप सिर्फ इश्यूज़ दे दें गूगल में इतने आ जाएंगे
लेकिन आपका जहन अंडरस्टैंड किस चीज़ को ज़्यादा करता है। जो लेट सपोज 10 इश्यूज आ गए, इसमें एक इशू ऐसा है कि इस पे आप 60% समझें, एक इशू ऐसा है जिस पे आप 30% समझें, एक इशू ऐसा है कि उस पे आप 70% समझें, एक इशू ऐसा है कि उस पे 80%। जिस पे ज़्यादा आप समझे उस इशू को आप हटाएं कि आपके जहन या कंसेप्ट आपका क्लियर हो। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि रिसर्च अपनी मर्जी की होती है, ये नहीं है कि बाय फोर्स आप पे कराया जाता है। ये डिपेंड करता है इंटरेस्ट पे कि आपकी इंटरेस्ट किस में है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो उसको आप एक क्वेश्चन ले आए, आपके जहन में क्या है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या है। फिर मैं आपको तरीका बता दूंगा कि किस तरह आपने करना है। ये तो हम ले रहे हैं। अब आपने क्या करना है, कमिंग क्लास में आप लोगों ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है और ये चीज़ें अपने साथ नोट किया करें। डायरी में करना चाहते हैं या लैपटॉप में, क्योंकि आगे फिर ये आपके काम आएंगे। सब पेपर पब्लिश को सर लगा जनी जरूर मरगी दी करे जनी वही दी कैटेगरी की दे जर्नल दादी सी नहीं तो जे कल रिसर्च की कना रिसर्च बबिया पब्लिश के रिसर्च स्टा कम प्रूफ ते नगा से फजूल दे मा बताइयो जर्नल के पब्लिश के यो जर्नल दासी भी चागा ऑथेंटिक नहीं भी इचीसीना अप्रूव नहीं भी यो इंटरनेशनल जर्नल भी यो उस्ता इचीसीना अप्रूव भी और यो लोकल भी अखवा दे ख्वाई चाहिए कि तागा पब्लिश की रोजाना बती खलक पब्लिश की दागे ने पैसे खले उन दागा खले बस यो वेबसाइट पे आगे अपलोड का वस्ता खलक बरा शक्ल पे गुरी खो यो दावी ची पागे ता बया फायदा मिलावी कि कलेक्ट सपोज तो प्रोफेसर या तो पके सभा जॉब द पाराजीन ता दागे यो नंबर मिलावी कि कता सीजे की पब्लिश का यो रिसर्च पेपर तो सीजे की रिसर्च पेपर पब्लिश करता ता दागे यो नंबर मिलावी सिर्फ सिंगे जो गोल्ड मेडल यो नंबर या सी दागे यो नंबर नो ब्या ची देस्ता ची तकल प गट लेवल बांधी या स्ता प स्ता चे एकेडमिक्स या स्ता जॉब पदे मंदरा स्ता सुन रिसर्च पेपर पब्लिश दी बे कौन की नो दागे सुन नंबर ता बेगी अब यह डिपेंड के जिता पर कम जर्नी के करेगा यो दी कि इम्पैक्ट फैक्टर भी इम्पैक्ट फैक्टर के उसमें जो पेपर हुआ 3.165 दा एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी की ओका मा दा अमेरिका यो जर्नल ने और आगे क्यों को यूनिम काले वागस्ट यूनिम काल के सिर्फ पेपर पब्लिश यूनिम काल आगे वागस्ट होए वागस्ट फादा जर्नल ले चला यो पेपर और देखो लोकल लस पेपर है नो दोनों फर्क भी नो आगे ब्यास्ता आगे डिपेंड की दा ब्या दा कहानी पे ब्यार तखैर दे वो कम दा से डेर लका टाइम सरबा गुदा कसान ने भी दाउन तख्ती चिदा ग्रानी खबर जाते कई पेश दावा वाली पूरे कम खैर है